अरे आगे Okay. पीछे. All the students are there. A very good morning to all again Yeah. today. I'm there to bore you out with some basics of the research, but हमेशा दवाई कड़वी होती है, तो इसलिए वो अच्छा होता है, आप जल्दी से अच्छे हो जाते हैं. वैसे रिसर्च में कुछ बेसिक्स हैं जो अगेन फिर मैं जहाँ कल छूट गया था उसे आगे फिर मैं इसको ले जाऊंगा. ठीक है, तो आप फिर से चालू करते हैं. स्क्रीन दिख रहा है? दिख Yes, रहा है sir. मेरा Thank you, स्क्रीन? sir. Thank you for. Yes, sir. Your screen is visible, and thank you for taking up today's session. So, participants, today is the third day of this faculty development program, and I heartily welcome you. And participants who has joined us yesterday, they know sir very well that sir is very keen in teaching, and sir has taught you so many practical aspects of this of the topic, and has shared so many practical information and knowledge with you. And today also sir is going to cover many more interesting topics, and sir will also be taking your questions which you had yesterday and which you will be having today also. So if there are any participants today who has not joined yesterday, so for them I would like to mention that our distinguished guest speaker is Dr. Suraj Kumar Singh. So Dr. Suraj Kumar Singh is currently serving as director of the Center for Climate Change and Water Research and the director of the Research and Development Cell at Suresh Gyan Bihar University, Jaipur, Rajasthan. So with this, I would like to hand over this podium to sir so that sir can take over and teach you uh, all the practical aspects today also. Good evening, all. Again to the next session, day 3 of this FDP, and again I thanks to the organizer like Imani Gautam and especially Dr. Jitendra Mehta for giving me this opportunity to share my experience that I have gained over the period of time in the field of research. So there are few topics that were assigned to me, so I'll be more aligned to those topics as like we have yesterday we have studied that the topics are equally important. The author's name, then you got the affiliation of the individuals, what will be their email ID, like here Saurav Kumar Gupta. So there are different way of writing name of the authors. Like here I have written one. It can be some special characters, but the same special characters will be reflected against that affiliation. Like many times, like if I, Saurabh Kumar Gupta and Suraj, somebody else having the same affiliation will have the same number irrespective of the position where he is standing. मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पेपर अपलोड करते हो तो एक पैनल है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैं अभी दिखाऊंगा वो. तो आपको ये पहले सब तैयार करके अपलोड करने से पहले डॉक्यूमेंट्स में ये सारे मटेरियल तैयार होने चाहिए कि आपके पास टाइटल पेज, तो टाइटल पेज में आपका टाइटल आ गया, ये ऑथर्स नेम आ गया. वन मीन्स यहाँ ऑथर नेम का वन क्या है, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म है. जैसे SKG, मतलब ये हो गया सौरभ कुमार गुप्ता, उसका ईमेल आईडी. ये SKG क्यों जरूरत है, क्यों हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा? इसलिए लिखा कि एट एंड ऑफ द डे जो लास्ट में इसका रहता है ऑथर्स कंट्रीब्यूशन, उसमें जस्ट रेफरेंस के बाद आपको लिखना रहता है कि किस ऑथर ने क्या कंट्रीब्यूट किया शॉर्ट फॉर्म में. जैसे कल मैंने दिखाया था, तो वहां जाके आपको मेथोडोलॉजी किसने बनाई, डेटा क्यूरेशन किसने किया, रिपोर्ट राइटिंग किसने लिखा. क्योंकि जो ऑथरशिप है वो कोई भाईचारा से किसी को साइंटिफिक फर्टिनिटी में बोलता है कि हर ऑथर जो इसमें है. तो अब मान लो कि ये पेपर जो हमारा पब्लिश हुआ, इसमें हर एक ऑथर ने डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन उसने कंट्रीब्यूट किया है इस पेपर में. चाहे वो एक ऑथर हो, चाहे वो 10 ऑथर हो. तो आज के जमाने में जो रिसर्च है
वो इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में पेपर्स ज्यादा एक्सेप्ट होते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, कोई एक एक्सपर्ट है एग्रीकल्चर का, कोई एक एक्सपर्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी का, कोई एक एक्सपर्ट आता है कंप्यूटर मॉडलिंग का। और उस रेस्पेक्ट में हम लोग कोई एआई बेस्ड या मशीन लर्निंग बेस्ड कोई नया सीड का या फॉरेस्ट या प्लांटेशन का एक मॉडल डेवलप करना चाहते हैं। तो वो जो एंगल से पांच लोग डिफरेंट डायमेंशन से सेम ओरिएंटेशन के बेस में जब लिखेंगे तो इनोवेटिवनेस आएगा, क्योंकि हर की अपनी पॉजिटिविटी रहेगी। प्लस अगर मान लो कि पेपर में कमेंट्स है, जैसे मान लो कि कमेंट्स आ गया, जो रिव्यूअर है उसने बोला कि आपने मशीन लर्निंग का कौन सा मॉडल लगाया, उसमें कौन सा वेरिएबल्स था, उसका कौन सा वैलिडेशन है। तो अब मान लो कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, वो तो अभी डेवलप कर रहा है ये सारी मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस में अपना एक्सपर्टाइज, तो वो उसको ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड अगर कोई बंदा है जो इसी में पूरी जिंदगी काम किया है, तो वो उसको बढ़िया से पेपर को रिवाइज भी करा देगा, प्लस करेक्शन भी करा देगा। तो इसलिए हमारा जो रिसर्च लैब है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें कि जो लोग बाग हैं, अगर आप देखो तो हमारे पेपर्स में कोलैबोरेटर्स जो जापानीज हैं, हमारे साथ इंडियन मिलिट्री वाले के सर्विसेज के हैं, डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। और सबका डिपार्टमेंट, किसी का ज्योग्राफी है, किसी को इकोसिस्टम सर्विसेज है, कोई प्लानिंग पॉलिसी पे काम कर रहा है, कोई मतलब आज के जमाना में आप घर में बैठ के आइसोलेटेड दो आदमी सिर्फ काम करेगा तो आपके पास एक मैनी टाइम्स ऐसा है कि लिमिटेड सोच आपने लगाई है उस पेपर में। लेकिन अगर पांच आदमी और सब डॉक्टरेट्स हैं, सब अपने फील्ड में माहिर हैं, तो उसकी क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग। एक तो हो गया एफिलिएशन। अब ये जितने भी लोग बाग हैं ये अपने फील्ड के गदावर हैं, तो अब इनके थ्रू अगर वो पेपर निकलेगा तो एक कॉमन डिस्कशन होगा, एक पेपर होगा। और हम क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड कर ले, जैसे जैसे मान लो हमारे पांच कंट्रीब्यूटर्स है, तो हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि ए आदमी क्या करेगा, बी आदमी क्या करेगा, सी आदमी क्या करेगा, डी आदमी करेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को मतलब अपने प्रमोशन के लिए नाम डाल दे, अपने बॉस को खुश करने के लिए नाम डाल दे, वैसे नहीं होता। हमारा रिसर्च एथिक्स ये बोलता है कि जो पेपर कंट्रीब्यूट किया है उसी का ऑथरशिप में नाम रहेगा। तो ये भाई भतीजावाद कभी रिसर्च में नहीं करना है, कभी इन्फ्लुएंस में किसी का नाम नहीं डालना कि हाँ भैया एक्स आदमी का नाम डल जाएगा तो मेरा पेपर एक्सेप्ट होगा, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि जो पेपर अपलोड होता है, देयर आर टू काइंड ऑफ रिव्यू प्रोसेस, उसको बोलते हैं ब्लाइंडेड प्री रिव्यू। ब्लाइंडेड प्री रिव्यू का मतलब ही है कि जब किसी रिव्यूअर के पास जाएगा तो उसका नाम नहीं लिखा रहेगा, तो इसलिए वो इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अब जैसे मान लो कि मैं, एक पैनल है जो मैं रिव्यूअर अपना हूं कहीं का, मैं अभी इसको कोशिश करता हूँ कि तुम्हें दिखाऊं कि मेरे पास कैसा पैनल में आता। मान लो कि मैं इसका रिव्यूअर हूं, मैं लॉगिन करता हूं अपना पैनल। तो जब पेपर अपलोड करते हो तो वो कैसा दिखता है दूसरे एंड से, एक तो आप अभी मैंने बोला था ऑर्चिड आईडी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हर आदमी को ऑर्किड आईडी निकालना है, बनाना है। अब ये मेरा ऑर्चिड आईडी है। ऑर्चिड आईडी क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं गूगल में जाता हूँ और ऑर्चिड आईडी, तो जैसे मैं करता हूँ ये मेरे नाम के अगेंस्ट में ये नंबर जनरेट करता है। ये मेरा यूनिक आईडी है, जो कि जब भी मैं पेपर अपलोड करता हूँ कहीं तो ये डालता हूँ। इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें ये वेरीफाइड ईमेल आईडी है, मतलब जो ईमेल आईडी मैं यूज कर रहा हूँ ये यहाँ सर्टिफाइड है। तो जितने भी पेपर्स मैंने पब्लिश किए हैं सब इस ईमेल आईडी से किया है। मान लो अगर मैं बीआईटी मिश्रा में था पहले, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में गया और फिर मैं आया ज्ञान विहार में, तो मैंने क्या किया कि वो दोनों ईमेल आईडी के पेपर को इसके साथ क्लब कर लिया, क्योंकि सारा करंट एफिलिएशन मेरा ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि आप कहीं भी पर्सनल ईमेल आईडी से पेपर कम्युनिकेट नहीं करोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट को उससे फायदा नहीं होता है। आप जब भी पेपर
कम्युनिकेट करोगे तो आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करोगे। तो अब वो तो तीन इंस्टीट्यूशन अलग था, तो बहुत आदमी डर के मारे यूज नहीं करता है, तो वो कोई डरने की बात नहीं है। आप उसको यहाँ इस जो जिनका वेबसाइट है आप उनको लिख सकते हो कि ये दोनों पेपर जो ईमेल आईडी से पेपर है वो मेरे हैं, तो ये वो क्लेम कर सकते हो आप अपने इस अकाउंट में, तो वो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर कर देता है। दूसरा खासियत क्या है कि इसमें आप सारे अदर जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सिंग होता है, जैसे कोई भी आप इंटरव्यू में जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो आपसे पूछेगा कि स्कोपस में आपके कितने पेपर हैं और स्कोपस एच इंडेक्स आपका कितना है। क्यों? क्योंकि गूगल स्कॉलर में वो प्री रिव्यूड जर्नल को भी काउंट कर लेता है, लेकिन स्कोपस में क्या है, सिर्फ जो स्कोपस में पेपर छपे हैं और साइटेशन है वही काउंट होता है। तो अब मान लो ये मेरा स्कोपस आईडी है, तो आप देख सकते हो कि मेरे अभी तक 147 टोटल स्कोपस आईडी में पेपर इनलिस्टेड है, और ये वो पेपर्स हैं जिनकी लिस्टिंग है। तो कोई भी डेटा अगर आपके पास इसकी स्कोपस का लॉगिन पासवर्ड है, तो आप 147 पेपर्स मैंने जो पब्लिश किए हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट ये मेरे साइटेशन है। तो इसका साइटेशन अगर आप गूगल स्कॉलर के साइटेशन से मिलाओगे तो जनरली हमेशा इसका साइटेशन गूगल स्कॉलर से कम आएगा, क्योंकि ये सिर्फ स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस के ही साइटेशन को कंसिडर करता है स्कोपस वाला, जबकि गूगल स्कॉलर प्री रिव्यूड क्रॉस रेफरेंस के भी साइटेशन को वो अपने मैट्रिक्स में ऐड करता है, तो इसलिए हमेशा वो उससे कम रहेगा। तो ये देखो कोई भी आदमी एक ही प्लेटफॉर्म में, ये आ गया मेरा स्कोपस। अब ये रिसर्चर आईडी क्या है? रिसर्चर आईडी वो है जो हर आदमी का वेब ऑफ साइंस में कितने पेपर छपे हैं जो कि सिर्फ वेब ऑफ साइंस इंडेक्स हैं, वो आईडी बताता है। तो अब ये मेरे को अभी पता चल जाएगा इसके थ्रू कि मेरे कितने पेपर्स वेब ऑफ साइंस स्कोपस में हैं। तो इसका मैं भी आपको लॉगिन पासवर्ड, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, आसान सा प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन इन करोगे तो आ जाएगा वो। जैसे कहीं भी आप सोशल साइट्स में रजिस्टर करते हो तो हर जगह देखो ये आईडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्चिड आईडी। तो आप हर जगह अपने ऑर्चिड आईडी से ही रजिस्टर करोगे, जहां भी करना है, चाहे स्कोपस में है चाहे वो रिसर्च गेट में है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, ऐसे करके वो दिखता है व्हेन इट गोज टू दिस डेटा बैंक। तो मेनू में जाओगे तो प्रोफाइल में जाओगे तो सारे, अब ये देखो अगर ये प्रोफाइल में अगर मैं गया तो यहाँ दिखा रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल टोटल मेरे कितने इसके पास डॉक्यूमेंट है अवेलेबल, और हर साइड में इंडेक्स अलग अलग रहता है, वो फिक्स काउंट नहीं आएगा। स्कोपस में अलग आएगा क्योंकि उसका सर्च और मैट्रिक्स करने का तरीका अलग है, गूगल का अलग है। लेकिन इन जनरल जो कोई भी इंटरव्यू में फोकस रहता है वो आपसे पूछता है कि आपके कितने कोर कलेक्शन है वेब ऑफ साइंस में। कल मैंने बताया था कोर कलेक्शन में SCI, AHCI, SSCI वाले हैं, ESCI। तो अगर मैं देखूंगा तो 180 मान लो अगर मेरा पेपर पब्लिश है, उसमें 100 पेपर मेरे वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन में है, मतलब टॉप जो जर्नल ऑफ द वर्ल्ड है उसमें है। ऑन द अदर हैंड इससे थोड़ा सा इंफीरियर अगर कोई पब्लिकेशन है तो मैंने दिखाया 147, तो मतलब टोटल 180 अगर मान लो मेरा पेपर है और 150 है, तो वो दिखा रहा है कि मेरे जो क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन अच्छा है, और वो सारा किससे इंडेक्स्ड है? सब ऑर्चिड आईडी से है। वैसे ही ये लूप प्रोफाइल है, ये SCI प्रोफाइल है, ये डिफरेंट एजेंसीज हैं जहाँ की आप अब ये जो ये प्रोफाइल है SCI प्रोफाइल है, ये MDPI में अगर छापते हो पेपर तो वो ये प्रोफाइल भी मांगता है साथ में। तो हर पब्लिकेशन हाउस डिफरेंट प्रोफाइलिंग है, तो अगर आप देख लो अगेन इसमें डिफरेंट, लेकिन सब किससे कनेक्टेड है? ये कॉमन इंडिकेटर है। तो इसलिए आपको हमेशा इसका लॉगिन पासवर्ड याद रखना है। जब भी पेपर अपलोड करोगे तो यही ऑर्चिड आईडी आपको डालना है, क्योंकि क्या है कि आप अगर चाहो तो हमेशा ईमेल चेंज कर दो और आप ऑर्चिड आईडी करके और उसमें अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको कभी जिंदगी में फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा एक ही ईमेल आईडी से, एक ही यूजर नेम से आपको सारा क्रिएट करना है, सो दैट कि सारे मैट्रिक्स वो इकट्ठे एक जगह अवेलेबल। तो ये इसका पर्पस है। तो ये मेरा आ गया, उसमें लॉगिन पासवर्ड जैसे आप कहीं बनाते हो ईमेल आईडी, वैसे ही इसमें इंस्टीट्यूशनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि जितने भी ये मैं साइट्स बता रहा हूँ, चाहे जो चीजें मैंने बताई, इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो रिसोर्स गेट है। और चीज तो चलो फिर भी पर्सनल कर लेगा, बाकी नहीं करता है। अब ये मान लो कि ये प्लेटफॉर्म खुलता है एमडीपीआई का। तो अगर मान लो कि मैं पहले दिखाता हूँ, कोई पेपर आया रिव्यूअर के पास, मान लो मैं रिव्यूअर हूँ, ये पेपर आया मेरे पास रिव्यू होने, तो मैं इसको अभी तुमको दिखा रहा हूँ कि कैसे दिखता है ये। अब ये आया मेरे पास, ये कहाँ का पेपर है, मान लो ये जर्नल है वाटर, ठीक है ना, ये उसका आईडी है जब जिसने अपलोड किया है, ये उसका टाइटल है या ऑथर्स है, ये किस स्पेशल इशू में उसमें छपा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि प्लेगरिज्म कितना है, यहाँ देखो कितना है प्लेगरिज्म, 40%। अब स्ट्रेट अवे मैं क्या करूंगा कि इस पेपर को मैं रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि साइंटिफिक डिसिप्लिन में क्या बोलता है कि मैक्सिमम जो आपका प्लेगरिज्म होना चाहिए, चाहे वो एआई है, चाहे वो प्लेगरिज्म है, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि भैया आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को या पब्लिशर को मूर्ख बना दोगे, तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है। तो अब ये जो मैं पैनल खोल के दिखा रहा हूँ, ये रिव्यूअर पैनल है। मेरे को ये लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिकेट या टर्निटिन का। हर जो पब्लिकेशन हाउस है उसमें इंटीग्रेटेड है, तो जैसे मैं अपना पैनल खोलूंगा, इसमें ये सारा उसका आ जाएगा। तो सबसे पहला चीज जो एज ए रिव्यूअर अपन चेक करते हैं, वो उसको चेक करते हैं प्लेगरिज्म। तो अब 40% मतलब ये जो काम किया बंदा, ये जो 50% जो इसमें लिखा है, वो कॉपी एंड पेस्ट है। स्पेशली ये जो तीन है, जो ऊपर से 1 2 3 4, ये चार पेपर हैं, एमडीपीआई का पेपर है, इसमें मोर देन 13% ऑफ द कंटेंट इसी पेपर से उसने चोरी किया है। तो मान लो कि अभी अपन छोड़ दें इसको, तो हो सके इसका बहुत सारा इक्वेशन, बहुत सारे टेबल्स, बहुत सारे फिगर्स उसने इसमें डाल के रखा हो। तो अब ये चाइना से है, ये कितना बड़ा साइंटिस्ट है, या कितना बड़ा ये नाम है किसी कंट्री में, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। हमको सबसे पहले देखना है। और मान लो कि मैं भाई भतीजावाद में छोड़ भी दूं, तो एडिटर इन चीफ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, तो वो लास्ट में रग मार देगा। तो एक पेपर में हमेशा याद रखना है कि जब प्लेगरिज्म रिपोर्ट आएगी, तो अगर आप इधर नीचे देखो, तो आप पूरा जो, ये तो देखो इसलिए आ रहा है कि पहले ऊपर वाला जो प्लेगरिज्म में है, तो इसको हम लोग प्लेगरिज्म नहीं मान लेंगे। ये जो इनका एफिलिएशन है, क्योंकि इस एफिलिएशन से पहले भी लोग बाग ने छापा है, तो इसलिए वो ये कलर में दिखा रहा है। अब इसमें प्लेगरिज्म में डिफरेंट कलर्स दिखाता है, वो डिफरेंट कलर्स का क्या इंडिकेशन अभी आगे बताएं। तो आप देखो कि आप ये जो लाइंस है देखो, जो सॉफ्टवेयर है ना, अगर तुम किसी भी पेपर से 3 या 3 से ज्यादा वर्ड अगर कॉपी पेस्ट तुमने किया है, क्योंकि जनरली जब अपन ये सॉफ्टवेयर है, ये ऑथेंटिकेट है, टर्निटिक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें प्लेगरिज्म सर्च से पहले उसको कमांड देना रहता है कि कितने वर्ड मिनिमम एज अ बेस आप प्लेगरिज्म को देखना चाहते हो। तो जनरली हम लोग 3 वर्ड्स रखते हैं। मतलब कोई भी आदमी अगर 3 वर्ड लगातार किसी और से उठा के चिपका के लिखा है, तो उसको हम लोग प्लेगरिज्म मानेंगे। तो बहुत लोग 3 करते हैं, बहुत लोग 5 करते हैं, बहुत लोग 7 करते हैं। लेकिन 7 करेंगे तो ये सारे जितने ये वर्ड्स हैं, ये सारे बच के निकल जाएंगे। दूसरा, प्लेगरिज्म ये भी दिखाएगा, जैसे कोई फॉर्मूला है उसको प्लेगरिज्म दिखाएगा, कोई इक्वेशन है, क्योंकि वो इक्वेशन मैंडेटरी है, तो किसी और ने पब्लिश किया, तुमने किया, तो तुम्हारे में भी इक्वेशन वो प्लेगरिज्म दिखाएगा। मान लो कि कोई ये है डेफिनेशन है, जैसे मान लो एक टेक्निक है एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस, जिसने सैटी ने बनाया, या एनडीवी है, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, जहाँ की वेजिटेशन है। तो अब जैसे मैं नॉर्मलाइज वेजिटेशन इंडेक्स लिखूंगा, वो यूनिवर्सल नाम है, तो उसको भी प्लेगरिज्म में दिखाएगा, क्योंकि किसी और के पेपर में वो लिखा हुआ है। तो वैसे वर्ड्स को एज अ रिव्यूअर हम लोग प्लेगरिज्म या एडिटर उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग भी उसको ऊपर से नीचे देखते हैं कि कंटेंट कितना वो लगातार चोरी किया है उसने, और किस टाइप के वर्ड्स का चोरी किया। अब जैसे मान लो कि उसने लिखा है सबसेट इंफॉर्मेट्रिक्स सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो ये कॉमन
डेफिनेशन है उसका, ये प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। तो ऐसे करके आप देखते जाओ, ये पूरी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है कि कौन बंदा ने कितना फिगर और लाइंस, ऐसे करके तो आप बच नहीं सकते हो। और ये अभी सिर्फ दिखा रहा है नॉर्मल प्लेगरिज्म, इसमें एआई वाला दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसमें निकालेगा। तो आज के डेट में अगर तुम चैट जीपीटी या कोई भी ग्रुप या जेनी, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, तो उसका एआई कंटेंट इसी में आ जाएगा। तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भैया ये एआई से पूरा लिख के लाया है। तो ये देखो जितना लाल लाल वाला है वो इस पेपर का है, जो डिफरेंट कलर्स है वो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यहाँ वो उसको इंडिकेट कर रहा है कि किस पेपर से उठा के वो उसमें मैच कर रहा है। अब जैसे मान लो SRTM DM है, ये एक जनरल नाम है, तो इसको हम लोग प्लेगरिज्म नहीं मानेंगे, ठीक है ना, जो नाम है उसको प्लेगरिज्म नहीं मानेंगे। तो वो आपको एज अ इंडिविजुअल देखना पड़ेगा कि जो इसने लिखा है, अब कंटिन्यूअस वर्ड ऑफ सीरीज है, जैसे इसने लिखा ये पूरा लाइन ही किसी और से कॉपी एंड पेस्ट है, तो इसको हम लोग अब प्लेगरिज्म मानेंगे। जब पूरी की पूरी लाइन, अब देखो ये फॉर्मूला है, इसको भी इसने बनाया, तो इसको नहीं मानेंगे। लेकिन पूरी की पूरी लाइन ही अगर वो चोरी करके रखा है, अब जैसे रडार सेट हो गया, एनवी सेट, ये फॉर्मूला है, इसको नहीं मानेंगे। तो ऐसे करके हम लोग सारे प्लेगरिज्म रिपोर्ट पीछे में आ जाती है। ये जो रेफरेंसेस क्या आता है, इसको भी प्लेगरिज्म में अपन एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको नहीं मानते। मेन कोई भी जो पेपर है उसमें 1% से ज्यादा आपका नहीं आना चाहिए, मतलब ओवरऑल 10%। और इंडिविजुअल पेपर में जैसे नीचे ये इंटरनेट से किसी पेपर से 1% है, ये चलेगा, इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 2% और ये 13%, मतलब इसका और इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। तो अगर मैं इसको अभी चेक करूं, तो मेरे को अभी दिखा भी देगा कि कौन कौन से वर्ड्स उस पेपर से है। तो मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाऊंगा तो टोटल कितने मैच ऑफ वर्ड्स है वो भी आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि रेफरेंस क्या डाला है उसने, कौन कौन से मैच है। तो एज अ रिव्यूअर, ये एक तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका पूरा ओवरऑल प्लेगरिज्म। अगर यहाँ हमें गड़बड़ी लग जाती है तो आगे रिव्यू में नहीं जाते हैं, पहले स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा है कि मान लो कि चलो ये प्लेगरिज्म परसेंटेज मान लो कम रहता, 10% रहता, उसके बाद ये मेरा प्रोफाइल आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चनर है जो किसी पेपर में एज अ रिव्यूअर वो मुझसे पूछा जाता है। जैसे वो पूछ रहा है कि डज द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड सफिशिएंट बैकग्राउंड एंड इंक्लूड ऑल द रेलेवेंट रेफरेंसेस। अगर आपने नहीं किया है तो मैं क्या लिखूंगा, अगर आपने किया तो यस, अगर लगता है कि नहीं उसने लिखा है लेकिन और भी इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो कैन बी इम्प्रूव, मतलब हो सकता है करो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं पुअरली रिटर्न है और उसको करवाना ही है, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यहां लिख देंगे मस्ट बी इम्प्रूव। तो ऐसे करके रिजल्ट डिजाइन को रेस्पेक्ट में, तो आप देखो पूरे अगर स्ट्रक्चर करोगे अपने पेपर को डिफरेंट कैटेगरीज में, तो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इसलिए मैं हमेशा भूमिका पे ध्यान देता हूं, क्योंकि वही अट्रैक्ट करता है। मीन्स भूमिका मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टिल इंट्रोडक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से जो रीडरशिप है आपके एब्स्ट्रैक्ट से अट्रैक्ट होता है। उसको लगता है कि नहीं यार इसमें कंटेंट है। जैसे कैसे एब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक अ मूवी ट्रेलर, जिसको कि कट एंड रेजर 2-2.5 मिनट का आता है, और उसमें डांस गाना सारा कुछ रहता है। तो जितना ज्यादा मसाला रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, जैसे पुष्पा का, तो देखो वो कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया। तो उस टाइप का आपको पेपर में भी ध्यान रखना है कि वो उस टाइप का पूरा फ्रेम किया हुआ पेपर हो। दूसरा रिसोर्ट डिजाइन, जिसमें कि आप प्रॉपर है, ऐसा नहीं कि वैलिडेशन। आज ही मैं एक कहीं गया था, तो उसने वैलिडेशन पहले कर लिया और रिसर्च बाद में कर रहा है। मैं बोला कि आप रिसर्च करने से पहले कैसे अपने डेटा को वैलिडेट कर लिया कि कौन सा बढ़िया रिजल्ट दे रहा हूँ, कौन सा खराब दे रहा है। मीन्स उससे गड़बड़ी क्या हो गया, उसका जो स्ट्रक्चर है कि जो 6 स्टेप है, उसको सेकंड स्टेप में उसने परफॉर्म कर लिया। तो अब जब सेकंड स्टेप में आपने परफॉर्म कर लिया, तो जो भी आपके रिजल्ट है या वैलिडेशन है वो हो गया नल एंड वॉइड। तो इसलिए आपको हमेशा रिसोर्ट डिजाइन पे फोकस रखना है। दूसरा मेथोडोलॉजी पे, कि एक प्रॉपर
मेथोडोलॉजी फ्लो चार्ट हो, जिसमें कि प्रॉपर डिजाइन हो। मान लो कि मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो ऐसे करके ये आ जाएगा। अब इसके पेपर्स को मैं देखता हूँ कि कैसा है। अब मैं पूरा पेपर को पढ़ूंगा। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर जो रेफरेंस लिखा हुआ है, कल नाम से लिखा हुआ था, आज यहाँ ये नंबर से दिया लिखा हुआ है, 1:3, 4:6। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट अभी सिखाएंगे कैसे लिखना है। तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जनरली जो यूज होते हैं रेफरेंस के लिए, और यूनिवर्सली पॉपुलर पॉपुलर है। एक तो है मेंडले, दूसरा है जोटेरो। तो मैं आज तुम्हें जोटेरो सिखाऊंगा कि कैसे ये रेफरेंसेस लिखना है, और मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखते हैं, बनाते हैं, उसी समय लिखना है, तो आपका जिंदगी हो जाएगा आसान। क्यों आसान होगा? चाहे ये पीएचडी कर रहे हो, चाहे पेपर लिख रहे हो। क्यों? जैसे मान लो कि तुमने अपने पीएचडी में 200 रेफरेंसेस डाले, आप अपने डीन रिसर्च के पास गए, थीसिस जमा किया, वो आपको बोला कि भैया नहीं, ये तो ओल्ड स्टाइल था, गलती से साइड पे रह गया, आप तो ये नया वाला IEEE करो। तो अब आपकी हो जाएगी हालत खराब, क्योंकि अंदर टेक्स्ट में भी और पीछे पूरा मैनुअली करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो नाम, वॉल्यूम नंबर, स्टाइल, बहुत बोरिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है, और उसमें मैनुअल एरर्स होता है। लेकिन जब आप एक रेफरेंस सॉफ्टवेयर जैसे जोटेरो एंड मेंडले इस्तेमाल करते हो, तो वो ऑटोमेटेड ये सिस्टम है। और एक बार मैं सिर्फ जाके वहां कमांड चेंज कर दूंगा रेफरेंस सिस्टम, तो वो ऑटोमेटिक अंदर में चेंज हो जाएगा। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जो 10 दिन का काम है, वो 1 मिनट में हो जाएगा। तो वो मैं आज डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो आराम से रेफरेंस सेटिंग हो जाती है। तो ये सारे पेपर्स हैं। अब डेटा के बारे में बता रहा है कि क्या डेटा है, कितने टाइप का डेटा है, कितने, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और फिगर्स अच्छे से लेबल्ड है, उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन है। डेटा सेट्स के बारे में आपको हमेशा डिजाइन, देखो चालू किया आपका एब्स्ट्रैक्ट से, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डाला, फिर अच्छे से उसको उसने लिखा, इंट्रोडक्शन, फिर बता रहा लास्ट पैराग्राफ में आपको हमेशा बताना है आपका एम, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन क्या था। ये इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में आपको हमेशा लिखना है कि आप अपनी स्टडी में क्या कर रहे हो। इसके ऊपर आप बता दो कि क्या ग्लोबल सिनारियो था, क्या इंडियन सिनारियो था, क्या लोकल सिनारियो था, और क्यों आपने ये पेपर लिखा, वो ऊपर में आ जाएगा। और यहाँ लास्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे कि आप अपने स्टडी में कौन कौन सा डेटा लिए हो, क्या उसकी ब्यूटी थी, कौन सा फैक्टर्स आपने लिया। तो अब ये फैक्टर्स में देखो, इसने लैंड सब्सिडेंस लिया, जियोलॉजिकल सेटिंग ली, हाइड्रो जियोलॉजिकल कंडीशंस है, ह्यूमन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। और ये इससे फायदा क्या होगा, अब रिजल्ट बताएगा कि क्या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे करके आपको लास्ट पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद आ गया स्टडी एरिया एंड डेटा। स्टडी एरिया एंड डेटा में क्या लिखना है कि स्टडी एरिया के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो बताना है, कि कहाँ है, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, आसपास कौन लोग बाग रहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट जियोलॉजी क्या है, कितना हाइट है, कितना एक्वीफर पानी नीचे है, कितना ऊपर है, कितने ग्राउंड वाटर रिजर्व है। तो आप ये जितने बेसिक इंफॉर्मेशन है अपने टाइटल ऑफ पेपर के रेस्पेक्ट में लिखोगे। ऐसा नहीं कि लिख रहे हो आम और यहाँ डिस्कशन कर रहे हो इमली का। उससे हमेशा याद रखो कि जो टाइटल और जो रिसर्च करने वाले हैं उसके रेस्पेक्ट में सारी कहानी बोलनी है। उसके बाद कौन कौन सा डेटा लिया, कितने समय में लिया, क्या उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, वो सारे कुछ आपको यहाँ डेटा यूज मेथोडोलॉजी में मेंशन करना है। और जो भी टेबल है उसको अंदर में साइड करना है, फिगर जहां है वहीं फिगर डालना है, और सीक्वेंस में डालना है। जैसे अब रेफरेंस भी जो लिखते हो, ऐसा नहीं कि 1-3 लिख रहे हो और फिर उसके बाद 27, 28, 29, 30 लिख दिया, नहीं। जो स्टैंडर्ड जनरल है वो बोलता है कि 1 to लेकर आप 100 तक जाओगे, उसमें सीक्वेंस में नहीं होगा कि पहले 100 आ गया फिर बाद में 4 आ रहा है, वो नहीं होता है। वो रनिंग में चलेगा सारा रेफरेंसिंग, प्लस वो रेफरेंसेस इसी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब किसी ने बोला कि इंडिया में फ्लड बहुत आता है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो आप सिंह का कोई पेपर है, मालूम चला जो सिंह का पेपर है उसने कभी फ्लड पे काम ही नहीं किया था, आप नेट पे गए, जबरदस्ती कोई मिला, आपने उसमें चिपका दिया, जबकि वो पेपर ड्रॉट पे था। तो आजकल इसको भी एज ए पैरामीटर मानते हैं रिट्रैक्शन का, जहां की आप बिना पढ़े हुए
जो साइंटिस्ट ने काम ही नहीं किया है उसको यहाँ साइट किया हुआ है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी साइटेशन करोगे वो पेपर पढ़ा हुआ होना चाहिए। और जब साइट किया ये 3031, तो वो एसआरटीएम के रेस्पेक्ट में ही तुमने स्टोरी किया होगा, वो रिसर्चर तो ही साइट करोगे। ऐसा नहीं है कि तुमने बस देखा देखी में किसी का भी मन किया कि यहाँ साइटेशन डाला तो गूगल में कोई भी साइटेशन डाल दिया, तो वैसे आपका पेपर हो जाएगा रिजेक्ट। फिर मेथोडोलॉजी में पूरा डेटा, इक्वेशंस, फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आप देखो कितना बढ़िया बनाया है कि कितना किसी को भी ये पेपर में समझ में आ जाएगा कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में कौन सा लिया, डेटा कहाँ से इंपोर्ट किया, कौन सा स्टडी एरिया था, वो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सिलेक्शन किया, उसमें कौन सी प्रोसेसिंग लगाई, कौन से डिफरेंट सिमुलेशंस, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, एंड फाइनली जाके आपको ये फाइनल रिजल्ट मिला। तो अब कोई भी लेमैन है, एक अननोन आदमी है जिसके पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है रिव्यूअर को, या मैं एक यंग रिसर्चर हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रोज 30 पेज या 40 पेज किसी का पढूं, तो कोई भी क्या पढ़ता है, बढ़िया साइंटिस्ट लोग एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा, उसका मेथोडोलॉजी देखेगा। तो अब एज अ इसको देख के मैं समझ जाऊंगा कि जो वो रिसर्च कर रहा है वो लेटेस्ट है या ऑलरेडी काम कर रखा है। प्लस ये सारे कनेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्ट हो। और इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखना है, इसमें कहानी नहीं लिखना। आप जो कर रहे हो अंदर, जो इंपॉर्टेंट चीज आपके स्टडी को यूनिक बनाती है, वो सारे जो फिगर्स हैं, अब देखो इतने छोटे छोटे फिगर्स आ गए इसके बीच में, ये फिगर्स उन्होंने नीचे लगा रखा होगा मेन टेक्स्ट में। तो आजकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अपनी चीज को कितनी शानदार तरीके से आप बता सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर कौन सा आपने मॉडल लिया, और रिजल्ट्स में आप अपने पूरे रिजल्ट जो भी आपका आया है वो आप अपना डिस्कशन करते रहोगे। ठीक है। फिर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हमेशा यूज करना है, टेबल्स, ग्राफ्स, फिगर्स, फिर प्रोजेक्शंस, वैलिडेशंस, चाहे वो ग्राउंड बेस्ड हो, चाहे वो स्टैटिकल बेस्ड हो। एंड डिस्कशंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका बताता है कि आपका इस जो रिसर्च है उसमें क्या यूनिकनेस है, क्या नोवेल्टी है, एंड फाइनली क्या कंक्लूजन। तो जो वहां शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख रहे थे नाम, इसलिए लिख रहे थे कि अब कॉन्सेप्ट में क्यूएच, क्यूएच में किसी का ऊपर का नाम लिखा होगा, तो इसलिए वहां ऊपर में हम लोग नाम लिखे। अगर मान लो फंडिंग मिला है, तो यहाँ आप अपना लिखोगे किस ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग है, क्या सीरियल नंबर था, कौन सा प्रोजेक्ट था। अब डेटा अवेलेबिलिटी स्टेटमेंट देना है, ये सब आप जब पेपर अपलोड करते हो तो ये पीछे के सेक्शन में कंपलसरी, जितने बड़े जर्नल में है, आपको इम्प्लांट करना है, लिखना है, नहीं तो हो जाएगा पेपर आपका एडिटर इन चीफ स्टेट अवे करेगा कि टेम्पलेट को फॉलो नहीं किया गया। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने सारा बता दिया, तो ये हो गया ओवरऑल। तो अब ये हो गई ये। उसके बाद बोल रहा है कि फिगर और टेबल्स क्लियर है कि नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये तो सबसे अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि अच्छे जर्नल में अगर पुअर क्वालिटी ऑफ इमेज है, क्लियरिटी नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश। इंग्लिश अगर ठीक नहीं लिखा है, ग्रामर्स, तो आप का पेपर हो जाएगा रिजेक्ट। तो आजकल क्या है कि बहुत लोग हैं जो कि इंग्लिश भी ठीक करते हैं। अब जैसे मान लो कि एआई कंटेंट है, साइंस डायरेक्ट, टेलर एंड फ्रांसिस एंड बड़ा जो साइंटिफिक जर्नल है, वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करो, वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप एआई टूल का इस्तेमाल नहीं करो। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि एआई टूल अपने रिसर्च में पेपर अपलोड करने से पहले उनका एक फॉर्मेट है जहाँ की डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा कि आपने एआई टूल का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो किस फॉर्मेट में किया है। तो हम ये लिख के बोल सकते हैं कि एआई टूल का हमने इस्तेमाल इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए किया है। तो वो उससे फिर वो अगर मान लो 5 या 10% आता है या 15% आ जाता है, तो वो छोड़ देते हैं कि चलो उसने इंग्लिश नेटिव स्पीकर नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं। इसके बाद अब जो आता है, डू यू हैव एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो मेरे से पूछ रहा है एज अ रिव्यूअर कि तुम्हारा कोई इससे ये तो नहीं है, कोई लड़ाई तो नहीं है कि तुम इंडिया में हो कोई पाकिस्तान में, इसलिए जानबूझ के पेपर आप उसका रिजेक्ट कर रहे हो। तो मैं अगर यस होगा तो यस करूंगा, तो यहाँ रीजन लिखना है, नो तो नो करूंगा।
फिर लिखा है डू यू डिटेक्ट प्लेगरिज्म, तो मान लो अगर प्लेगरिज्म है, मैं यस कर दूंगा तो पेपर ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बहुत लोग क्या करते हैं आजकल कि अपना साइटेशन बढ़ाने के लिए खुद सेल्फ साइटेशन डाल देता पेपर के लास्ट में, सो दैट कि उसका साइटेशन है। तो अगर वो मेरे को दिख गया कि उसने किया है, फिर यस कर दूंगा तो फिर वो पेपर कर देगा रिजेक्ट। फिर तुमको लगता है डू यू हैव एनी एथिकल कंसर्न अबाउट द स्टडी, मान लो कि किसी में अब किसी एनिमल का इस्तेमाल किया है और उसने इंस्टीट्यूशनल रिसर्च बॉडी एंड एथिकल क्लियरेंस नहीं दिया है, तो यस लिख लूंगा, फिर ये पेपर उड़ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है जहां की पेपर को आपको एज अ रिव्यूअर पैनल आपको इवेलुएट करना है। इसमें चार ऑप्शन दिया है, हाई, एवरेज, लो, नो आंसर। तो मेरे को ये चारों में से हर एक सेक्शन के अंदर मेरे को सेलेक्ट करना है इस पेपर के रेस्पेक्ट में। अब है रेटिंग, नोवेल्टी कैसा है। अगर लो करूंगा, अगर इसमें से मान लो कि टोटल 7 सेगमेंट है, इसमें से अगर मैं 5 सेगमेंट में लो सेक्शन में मैं मार दूं पेपर को, तो वो पेपर हो जाएगा रिजेक्ट। तो अपन अगर मान लो कोई सेक्शन वो अच्छा लिखा है, कोई सेक्शन एवरेज लिखा है, कोई लो लिखा है, तो ऐसे करके उसको रेटिंग दे देते हैं। और यहाँ पर 2 पैनल आता है हमारे पास, 3 पैनल आते हैं इसमें। तो पहला पैनल में क्या है कि आप ऑथर को क्या कमेंट देना चाहते हो, तो जो भी मैं करेक्शन इसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनलिटी, क्वालिटी, साइंटिफिक, वो मैं यहाँ ऑथर्स को लिख के दे देता हूँ, वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे लिखता हूँ। फिर इंग्लिश का कंसर्न है तो इंग्लिश का वो लाइन बताओगे कि कहाँ कहाँ इसने गलत लाइन लिखा, कौन सा पेज नंबर, कौन सा लाइन नंबर, वो सारा मेंशन करना रहता है। एडिटर को क्या आप कमेंट भेजना है कि क्या करना है, एडिटर से आपको आपको सजेशन देना, फाइनली डिसाइड तो वही करेंगे। एंड फाइनली ये 3 पेपर मॉडल आता है कि आप आर्टिकल को प्रेजेंट फॉर्म में आप एक्सेप्ट करोगे, आप माइनर चेंजेस के साथ करना चाहते हो, आप इसको मेजर रिवीजन देना चाहते हो, या पेपर को रिजेक्ट करना चाहते हो। तो ये 4 ऑप्शन कैसे डिसाइड होगा, जो ऊपर में करेक्शन दूंगा। अगर मैं ऊपर में करेक्शन दे दिया और यहाँ एक्सेप्टेंस दे दिया, तो एडिटर मेरे ये एक्सेप्टेंस को नहीं मानेगा। अगर मैंने करेक्शंस यहाँ दिया जो कि मेजर इन नेचर है, और मैंने यहाँ माइनर सेलेक्ट किया, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये है। प्लस लास्ट में वो एडिटर हमसे पूछता है कि भैया ये जो पेपर में जो रिव्यू डाले हैं, इसमें कहीं तुम एआई का इस्तेमाल तो नहीं किए, कहीं तुमने जो पेपर है उनके ऑथर से तो नहीं कांटेक्ट किया, अपने साइटेशन तो नहीं इंक्लूड करवा दिए। ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ऐसे करके आता है सारा। अभी तक मैंने जितना किया हुआ है, ये टोटल 77 रिव्यू मैंने कर लिया है, और इसमें से बहुत सारे मैंने रिजेक्ट भी किए हैं और बहुत सारे पब्लिश भी किए हैं। तो हर एक का अगर मैं खोलूं इसको, तो यहाँ जाऊंगा तो मैंने कौन सा कमेंट दिया है, ये पूरा मेरा रिपोर्ट आ जाएगा एज अ इवेलुएटर, कि मैंने क्या सा उसको दिया है और उसने क्या जवाब लिखा उसके अंदर। और यहाँ पर अगर पैनल में जाऊंगा तो हर बार क्या चेंजेस किया वो सारा आ जाएगा। तो ये 2 वे प्रोसेस है। तो ये मान लो एज अ रिव्यूअर मैंने ये सब करेक्शंस उसको दिए थे कमेंट, जब उसने पेपर किया कि लाइन नंबर, पेज नंबर में क्या है, कीवर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है, इंट्रोडक्शन में क्या है। प्लस ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम ही बताना कि भैया तेरे में ये खराबी है, तेरे में ये। तो एज अ रिव्यूअर आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा रिव्यूअर तब माना जाएगा कि आप उसके प्रॉब्लम को भी बताओ और साथ में उसके सॉल्यूशन के भी बताओ। तो हर जगह हम उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब किसी आदमी को मैंने बोल दिया कि तुम गलत हो, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कहाँ गलत हो और कैसे ठीक हो सकता है। तो हमेशा हर जगह आपको ये देखो कि पूरा हमने उसको एरर बताया हर पेज नंबर, लाइन नंबर में, हर पेज वाइज। आप देखो चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, इतने सारे करेक्शंस हमने उसको दिए हुए हैं, मैंने दिए हुए हैं उसको। फिर उसने करेक्शन करके वो सारे अपलोड किए यहाँ पास। फिर मैंने उसको सारा कुछ पढ़ा। तो पहले मैंने उसको कमेंट क्या दिया था, अगर तुम देखोगे तो पहले मैंने कमेंट उसको दिया था मेजर रिवीजन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कैन बी इम्प्रूव, तो सब में मैंने कैन बी, मतलब मेरे को कोई भी चीज पसंद नहीं आई थी। प्लस ओवरऑल रिकमेंडेशन मैंने माइनर उसको ये दिया था, क्या बोलते हैं, करेक्शंस। तो अब वो बंदे ने पूरा जो ये करेक्शन है उसके अलोंग, ये बंदे ने पूरा इस लाइन में थैंक यू फॉर योर आइडेंटिटी वी एक्नॉलेज, फिर उसने बोला कि ये चीज मैंने हटा दिया, ये चीज ठीक कर दिया।
ऐसे करके पेज पेज नंबर में हमने ये लाइन मॉडिफाई कर दिया और हाईलाइट कर दिया रेड कलर से। तो ऐसे करके मैंने कल बताया था कि कैसे अपने मैन्युस्क्रिप्ट में चीजों को हाईलाइट करके बताओगे। तो पहले मैं ये सारे पढ़ूंगा कि जो मैंने कमेंट्स दिया है उसके अगेंस्ट में जो ऑथर है वो कुछ कर रहा है कि ऐसे ही सिर्फ गुगली दे रहा है कि हाँ मैंने कर दिया और वहां जाके कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लाल कलर के कुछ दो लाइन उसमें लिख दिया है। तो वो तो मैंने जब इस लाइन में लिखा है तो मेरे को पता है स्ट्रेट अवे फिर मैं जाऊंगा उसके मैन्युस्क्रिप्ट को डाउनलोड करूंगा और पढ़ूंगा कि जो मैंने बोला है, सिंस मैं रिव्यूअर हूं तो मेरे को पता है कि लास्ट टाइम मैंने क्या उसको कमेंट दिया। और फिर अगर लगता है कि नहीं भैया ये तो कमेंट जो हमने उनको दिया है उन्होंने सब चीज ठीक कर लिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू में अगर आप देखेंगे तो मैंने उसको क्या किया हुआ है, तो इतने सारे करेक्शंस आते हैं चाहे वो फॉरेन के हो चाहे इंडियन हो। देखो नेक्स्ट में आप मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया उसको, लिख दिया कि नो नो नो, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो अभी ये पूरा रिव्यूअर पैनल दिखाया मैंने, ये तो रिव्यूअर पैनल है। अब मान लो कि तुमको पेपर अपलोड करना है तो उसका पैनल अलग है और रिव्यूअर पैनल अलग है। अब ये मान लो ये पैनल है, अगर मान लो कि ये मैं पेपर अपलोड कर रहा हूं तो हर का एक फाइल फॉर्मेट है। ये बोल रहा है कि भैया जो टेम्पलेट है उसी टेम्पलेट में करोगे तो ही पेपर एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मान लो मैं ऐसे ही एक डेमो ये पेपर चढ़ाता हूँ इसके अंदर, टाइटल पेज ही चढ़ाता हूँ। मैंने चलाया, बस दिखा रहा हूँ कि कैसे आगे आपको बढ़ना है। अब अगर ये एक और ऑप्शन आता है बैकग्राउंड सबमिटेड, सबमिट में अब कोई पेपर मान लो कि अब देखो मैंने पेपर इतने सारे रीसबमिट किए हैं और ये स्टेटस रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बढ़िया लिख रहे हो अपने से बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो सारे पेपर एक्सेप्ट ही होंगे। अगर आप देखोगे मेरे को ऑथर्ड पेपर्स में अगर मैं जाऊं यहाँ तो रिजेक्टेड 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 कोई एक्सेप्टेड है। तो देखो रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंट इज जस्ट लाइक अ मैच, कभी इंडिया जीतेगा कभी हारेगा। तो उसमें कभी आपको दिल पे नहीं लेना। हाँ हमेशा जब भी रिजेक्ट होगा तो रिव्यूअर आपको एक कमेंट दे के उसको पेपर को रिजेक्ट करना है। तो आपका एज अ ऑथर क्या काम है कि जब भी कोई रिजेक्शन मिलता है और उसमें लगता है कि नहीं ये अगर चीज मैं परफॉर्म करता हूं तो इससे मेरी प्योरिटी या स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो हमेशा आपको उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए रिवाइज करते हुए जो ऑथर्स रिव्यूअर्स ने बोला है उसको करके फिर दूसरे जर्नल में आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो अभी देखो ये मेरा एक पेपर है जिसमें कि पेंडिंग मेजर रिवीजन आ रहा है। तो अगर मैं इसमें जाऊंगा पेंडिंग मेजर है मतलब उसने रिजेक्ट नहीं किया है और उसने कमेंट डाला है। तो इसमें कितने रिव्यूअर आए, इसमें दो रिव्यूअर आए। राउंड वन चल रहा है, अब राउंड टू जाएगा, राउंड थ्री जाएगा। ठीक है, वर्ड काउंट है, कितना दिन पहला आया 41 डेज, कितने टोटल पेज नंबर है, तो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है। तो अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा था, अपलोड करने का ऑप्शन। तो अगर मान लो, और एक ऑप्शन है प्री प्रिंट का। हर जो बड़ा जर्नल है उसका आजकल प्री प्रिंट सर्वर होता है। तो बहुत सारे जो लोग बाग हैं वो प्री प्रिंट में डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालता प्री प्रिंट में, बिकॉज मैंने कोविड के समय दो पेपर डाल दिया प्री प्रिंट में। अब प्री प्रिंट क्या है कि पेपर पब्लिश नहीं हुआ लेकिन हर पब्लिकेशन हाउस का एक सर्वर है, जैसे रिसर्च गेट का एक सर्वर है, एल्सीवियर का अपना सर्वर है, मतलब प्री प्रिंट है। उसमें रिव्यू में जब पेपर डालता है आदमी तो मान लो कि 2 साल पेपर लगा छपने में, तो उस 2 साल में तो आपका पेपर का साइटेशन मार्क आ गया। कोविड का पेपर था तुमने डाला और कोविड खत्म हो गया उसके बाद छपेगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है कोविड के ऊपर, क्योंकि वो तो बीमारी चली गई तो पेपर क्या मतलब है। तो क्या बोलता है
जो बड़े पब्लिकेशन हाउस हैं कि आप अपना पेपर प्री प्रिंट में छोड़ दो। प्री प्रिंट में जैसे छोड़ोगे तो वो बिना प्री रिव्यूड जो जर्नल वाला है उसको एक यूनिक डीओआई दे देता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। मीन्स एक आपको यूनिक आईडी दे दिया। अब उस यूनिक आईडी के बेस पे वो पेपर साइट हो सकता है, लेकिन वो पेपर प्री रिव्यूड नहीं है, वो डायरेक्ट अपलोडेड है। तो अगर पेपर ये हो गया एक्सेप्टेंस, प्री प्रिंट में अपलोड हुआ सेम जर्नल का, और पेपर एक्सेप्ट हो गया, तो आपको हेडक नहीं होगा। पहले मेरे को पता नहीं था, मैंने डाल दिया कोविड के समय, लेकिन हमारे दो पेपर हो गए रिजेक्ट, दो रिवीजन के बाद। फिर मैं थर्ड पब्लिशर में डाला, मान लो मैंने टेलर एंड फ्रांसिस में डाला था, अब मैंने डाल दिया मान लो उसी के अंदर किसी और जर्नल में। वो जब गया उसके पास, वो बोल रहा है कि भैया आपका 100% प्लेगरिज्म आ रहा है। जैसे 40% लिखा हुआ था वैसे हमारा 100% है। रिव्यूअर ने इतना लंबा चौड़ा खूब गाइडलाइंस लिख के भेज दिया हमें, रिसर्च एथिक्स के बारे में लिख दिया। हमने बोला कि यार पेपर तो हमने छापा नहीं। फिर हमें लगा कि लगता है कि कोई हमारा डेटा लेके भाग गया और हमारे बिना पेपर छाप दिया, बिना हमारे नाम का, क्योंकि हमारे नाम का रहता तो हमें पता रहता। लेकिन वो कभी हमारे स्कॉलर कहीं मैट्रिक्स में ऐड ही नहीं हुआ। फिर हम लोग गए उसको बोले कि भैया तुम हमें रिपोर्ट बताओ कि किससे वो मैच कर रहा है। वो फिर प्री प्रिंट सर्वर का लिंक भेजा कि भैया ये प्री प्रिंट में तुम्हारा पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। फिर हम लोग उसको बताया कि भैया ये शर्पो रोमियो प्लेटफॉर्म पे है, जो कि एक प्री प्रिंट सर्वर है, जो कि रिसर्च स्क्वायर स्प्रिंगर का है, और ये कोई पब्लिकेशन नहीं है। ये रिसर्च खुद ही जो पब्लिकेशन हाउस है वो बोलता है कि आप अपने पेपर का साइटेशन मार नहीं खाएगा, इसलिए आप प्री प्रिंट में डाल दो। अब बाद में जब छपेगा तो वो साइटेशन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं बहुत सारे पेपर्स अपने गूगल स्कॉलर में दिखा सकता हूँ जहां की मैं कोविड पे था प्री प्रिंट वाला, तो वो बाद में किसी जर्नल में छपा और प्री प्रिंट का अलग साइटेशन है। तो प्री प्रिंट का भी साइटेशन हो सकता है, 40-40 साइटेशन है प्री प्रिंट का है, लेकिन उसमें हेडक बहुत ज्यादा है। इसलिए अब मैं कभी कोई पेपर जब आप अपलोड करोगे तो फाइनल सबमिशन में भी मैं दिखाऊंगा कि वो आपसे बोलेगा कि प्री प्रिंट में चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है ये पेपर। ऑलवेज से नो। ठीक है ना, यस करोगे साइटेशन कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो अगर प्लेगरिज्म में पकड़ लिया तो उसको समझाना इज बिग हेडक। तो इसलिए नहीं, मैं एज अ रिसर्चर आई डोंट नाउ। ऐसे तो अच्छी चीज है, लेकिन उसको फिर बड़ा हेडक है इंडिया में, तो कोई समझता भी नहीं है वो सारी चीजें। बाहर में चलो बड़ा है पब्लिकेशन हाउस तो समझ भी जाएगा। अब मैंने अपलोड किया पेपर को, जो मेरा फाइनल है, मान लो तुमने अपलोड कर दिया, इसमें लॉगिन पासवर्ड और चिट से बनाया। अब ये पूछ रहा है कि भैया यस लिख देता हूँ, यस कि आपने टेम्पलेट से किया है कि नहीं किया, बोल रहा एक भी चीज जो वो बोल रहा अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो नेक्स्ट पेज में जाएगा ही नहीं। और ये हर जनरल का अलग प्लेटफॉर्म है। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो स्प्रिंगर का अलग होगा, टेलर फ्रांसिस का अलग होगा, साइंस डायरेक्ट का अलग होगा। इसलिए पेपर अपलोड रेफरेंस सेट करना अगर रिजेक्ट हो गया इज अ बिग हेडक। इसलिए आप जब जनरल चूज करो तो उसके लिए बड़ा चूजी रहो कि कैसे जर्नल में डालना है। अब यहाँ पर आ गया, ये बोल रहा कौन से जर्नल में डालना है। इसके अंदर बहुत सारे जर्नल है, तो मान लो अब कौन सा जर्नल हम लोग फायदा करेगा मुझे किस पेपर में डालने के लिए। तो उसके लिए अब क्या करेंगे अपन, एक बोर तो नहीं हो रहा है यार कोई, नहीं सर, बोर तो नहीं हो रहा परफेक्ट है, है, एकदम बोलूंगा तो अभी परफेक्ट। मैं बंद कर दूंगा, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। नहीं सर, No, परफेक्ट sir, एकदम। not at all. सर ये रिव्यूअर पैनल जस्ट लाइक स्कॉलर वन ऑफ क्लेरिवेट। हाँ जी। ये जो रिव्यूअर पैनल आप बता रहे हैं ये स्कॉलर वन की नहीं तरह नहीं, होता है ना ये क्लेरिवेट के। ये तो पहले मैंने रिव्यूअर पैनल दिया था, अब तो सबमिशन पैनल एज अ ऑथर में कर रहा हूँ। है ना, लेकिन ये जो चीजें पूरी मैन्युस्क्रिप्ट मैनेजमेंट है, तो ये हाँ। क्लेरिवेट कंपनी का स्कॉलर वन भी आता है उसकी तरह ही नहीं है नहीं ना, नहीं एमडीपीआई नहीं, का। अभी क्या है ना कि ये हर पब्लिकेशन हाउस का मैंने, अभी ये सबमिशन प्रोसेस है। रिव्यूअर पैनल मैंने पहले दिखाया कि कैसे आएगा, अब रिव्यूअर पैनल एंड प्रोसेस मैंने दिखाया। अब मैं दिखा रहा हूँ कि स्टार्टिंग प्रोसेस एज ए इंडिविजुअल आप जब अपलोड करोगे तो कैसे अपलोड करोगे, वो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओ, समझ में आई। जी सर। ओ भैया ये तीर कौन बनाता है, कुलवंत। यार अपने कॉपी पेन रखो वहां, तुम बनवाओ यार, इस स्क्रीन में बना के मेरा दिमाग खराब हो जाता है।
आपको सिखा रहे हैं बैठ के या बना रहा है? ठीक है। तो मेरे को कोई फायदा नहीं है, मेरे को तो आता है। आपको सीखना है तो सीखो, नहीं तो लॉग आउट करो, सर्टिफिकेट बाद में ले लेना। जब तुमको सर्टिफिकेट के लिए आए हो तो भैया यहाँ से चले जाओ, आपको दे देगा, मैं बोल दूंगा, नाम लिख के भेज दो, मैसेज कर दो कि मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप जो जनरल में करना है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जनरल सिलेक्शन मैंने बोला। की टू सक्सेस इज योर मैन्युस्क्रिप्ट को डिसाइड करना कि किस जनरल में मेरे पेपर में स्ट्रेंथ है, कि मैं कमजोर जनरल में भी ना डाल दूं और बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर में भी डाल दूं कि रिजेक्शन हो। तो उसके लिए आजकल एक ऑप्शन आ गया हर जनरल में। आप गूगल में जाओ, मान लो कोई साइंस डायरेक्ट का मैं दिखाता हूँ, साइंस, मान लो साइंस, अब ये दूसरा पब्लिकेशन हाउस का जर्नल फाइंडर, सिर्फ लिखना है जर्नल फाइंडर, कुछ नहीं करना है। आप जैसे जर्नल फाइंडर लिखोगा, हर पब्लिकेशन हाउस, टेलर, फ्रांसिस, स्प्रिंगर, एमटीए, अब कुछ नहीं करना है आपको। अगर मान लो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि भैया कौन सा जर्नल है, किस में जाए, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस ना मेरे पास है ना सुपरवाइजर के पास है, तो क्या करें, कुछ नहीं करो, ये यहाँ आ गया। अब आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट पकड़ो, मान लो ये मेरा मैन्युस्क्रिप्ट है। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, sir. यहां जाओ और फाइंड जनरल्स डाल दो, कुछ नहीं करना है, एब्स्ट्रैक्ट के बेस पे लेता है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा तुम्हें चाहिए, इसमें ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि ओपन एक्सेस वाला चाहिए कि फ्री वाला चाहिए। मान लो तुम बोल रहे हो कि भैया हम तो ठन ठन गोपाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसको ऑफ कर दो। ठीक है। तो अब जितने भी जनरल अब स्क्रीन पे आया है, ये वो जनरल्स हैं जो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट में आधार पर जो सर्वर है वो तुमको सजेस्ट कर रहा है कि आप इसमें डाल सकते हो। अब इसमें भी अब हेडक का काम है कि भैया सर्वर तो कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट डालोगे वो तुमको बता देगा कि भैया इसमें डाल दो, लेकिन हम अभी भी कैसे, कुछ तो शॉर्ट लिस्ट हो गया कि पहले मेरे पास 200 जर्नल थे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट के बेस पे मान लो 10 जर्नल है, अब इस 10 में से मेरे को तो डालना सिर्फ एक ही में है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा चॉइस होगा, मैंने पहले बताया कि जिसके 12 इशू है, मैं एवरेज देखूंगा कि डिसीजन जो आता है किसी का, इम्पैक्ट फैक्टर 4 है, साइड स्कोर ठीक है, ये ठीक है, डिसीजन कितना देर में आ रहा है और एक्सेप्टेंस डेट कितना है, तो इसमें 182 डेज है, मतलब 6 महीना लेता है। और पहला डिसीजन मैं अपलोड करूं तो वो कम से कम 20 दिन बाद मेरे को बता देगा कि ये पेपर ठीक है कि नहीं या रिजेक्ट करेगा। तो जितना कम रहेगा, प्लस इसमें चार्जेस तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये फ्री में छाप देगा। ये 279 डेज ले रहा है, लगभग ये 1 साल ले रहा है। तो मैं बोलूंगा भैया मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि, लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि नहीं यार इसका इम्पैक्ट फैक्टर तो बहुत ज्यादा है, तो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू, योर गाइड एंड योर थॉट प्रोसेस। इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि भैया ये होना चाहिए, ये आपका चॉइस है। मैं हमेशा तवज्जो देता हूँ इम्पैक्ट फैक्टर एंड फर्स्ट डिसीजन, ये मेरा क्राइटेरिया रहता है, एंड एक्सेप्टेंस रेट। अब एक्सेप्टेंस रेट देखो कि मान लो कि 100 पेपर अपलोड होते हैं अगर इस जनरल में, तो 90% रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए जितना ज्यादा इनका रिजेक्शन रेट रहता है उतना ज्यादा उसका एक्सेप्टेंस मतलब इम्पैक्ट फैक्टर रहता है। तो हर बड़ा जर्नल देखो वो आजकल देता है कि कितना इम्पैक्ट फैक्टर है और क्या, तो ये डिफरेंट है। प्लस आपको क्या करना है, मान लो कि हमने इतना सारा, 2 जनरल मैंने डिसाइड किया कि ये एक जनरल में मैं पेपर डाल सकता हूं और ये एक जनरल, तो आप क्या करो, आप चले जाओ इस जनरल के जो पेज में है, कहाँ गया, विजिट जनरल पेज। तो
और जनरल में टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखो ऐसा कोई चूरन नहीं है कि मैं तुमको बता दूंगा और कल तुम 10 इम्पैक्ट फैक्टर में लिख दोगे पेपर और छप जाएगा। करते करते आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट तो किसी दिन से करना ही पड़ता है, तो वो वाली बात है। तो आप इसमें चले जाओ, आप देखो उसका एडिटर इन चीफ कौन है, मैं पूरा देखता हूँ जो पेपर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पेपर मान लो मेरे पास सब्सक्रिप्शन बेस नहीं है, मेरे पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी से मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा मांग रहा है, वो हमारा इंस्टीट्यूशन के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, और ना मैं हर दिन अपने दोस्त को भेज सकता हूँ, तो मैं ओपन एक्सेस वाला ढूंढता हूँ, क्योंकि इसमें लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। जैसे डाउनलोड किया ये खुल गया। अब ये जब मैं पेपर डाउनलोड करूंगा तो मैं देखूंगा कि इसकी जो स्टैंडर्ड है पेपर का, मेरे टॉपिक से रिलेटेड, फिर मैं सर्च करूंगा कि उसका जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ और मेरे जो रिजल्ट आए हैं, क्या वो काम किया। अब ये मैं पेपर जैसे डाउनलोड किया इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी में, ये पेपर मेरे को बहुत खास तो नहीं लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और रिसर्च आर्टिकल है कि कमेंट्री, वो देखना पड़ेगा। तो वो अभी पता चल जाएगा इसके होम पेज में जाके। और इसने एप्लीकेशन एरिया किया है, एक विजुअल डीप मशीन लर्निंग का डाला, आजकल लेटेस्ट चल रहा है। मतलब कुछ भी इसमें नहीं है, कोई बहुत ही तगड़ा रिसोर्स नहीं किया, जनरल बातें की है। मतलब या तो इसने ओपन एसेस किया है क्या पेपर, अब देखना पड़ेगा, डिक्लेयर फंडिंग द स्टडी डिड नॉट रिसर्व। अब या तो बहुत बड़े ये लोग ऑथर होंगे जिन्होंने लिखा होगा ये पेपर। तो ये अब मेरे को, अगर मैंने अच्छा काम किया तो मैं एक ट्राई इसमें देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पेपर इसने लिखा और इंडियन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जैसे वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग स्टडी यूजिंग कंप्यूटर विजन, मतलब ये सिंपल सा लिखा हुआ है जैसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत सारे बुक्स है। एक इंडियन राइटर के बुक होता है, एक फॉरेन, वो आधा समझ में नहीं आता, और इंडियन वाला लगता कि नहीं मेरे दिमाग में 70% जा रहा है। तो अब ये जो लिखा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा हुआ, समझ में आ रहा है, देख के ही समझ में आ जाता है। तो मैं इसमें अब फर्स्ट टाइम मैं अब इसी जर्नल में मारूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो ऐसे करके अपन डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि गए और डायरेक्ट वो अपलोड कर दिए। तो मैं कहाँ था, अपलोड सेक्शन में ना, यहाँ जाके फिर मान लो कि मैंने एग्रीकल्चर पे काम करता हूँ, तो एग्री लिख दिया तो यहाँ आ गया। अब इसमें भी दो ऑप्शन है कि आप किसी स्पेशल इशू में डालना चाहते हो कि नहीं। तो मैं किसी स्पेशल इशू में नहीं डालना चाहता हूँ। अब यहाँ सेक्शन में वो पूछ रहा है कि कोई स्पेशल इशू है क्या, तो स्पेशल इशू मान लो कि ये मेरा मैच कर रहा है, तो मैं स्पेशल इशू में डाल सकता हूँ। वो अगेन डिपेंड करता है कि जाके देखो कि उसके स्पेशल इशू में कितने पेपर और किस टाइप के छपे हुए हैं, उसमें है। फिर यहाँ पर आर्टिकल टाइप पूछ रहा है कि जो, अब ये देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि रिसर्च इज ऑलवेज अ रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च कैन ऑल्सो बी अ रिव्यू आर्टिकल। रिसर्च कैन ऑल्सो बी अ बुक रिव्यू, कि किसी रिसर्चर ने बुक लिखा है और तुम उसके बेस पे उसका रिव्यू कर रहे हो कि उसके पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, वो भी छपता है। फिर ब्रीफ रिपोर्ट, मान लो कि कोई रिपोर्ट आपने बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्लेशियर पे आपने काम किया है, वो आप छाप सकते हो। केस रिपोर्ट, केस स्टडीज आप छाप सकते हो। कमेंट्स, 1-1.5 पेज का जो है कमेंट्री, 2.5 पेज का कम्युनिकेशंस, कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके डिफरेंट एडिटोरियल्स, ऐसे, हाइपोथेसिस, ओपिनियंस, प्रोस्पेक्टिव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप ऑफ पब्लिकेशन है। लेकिन हमें बताया नहीं जाता है, इसलिए हमें हमेशा लगता है कि रिसर्च आर्टिकल ही रिसर्च होता है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, सब आजकल साइटेबल है, सब प्री रिव्यूड है, और सबका अपना ऑरा है और उसका नेचर है। तो आप कुछ भी कर सकते हो इनमें से, व्यू पॉइंट भी दे सकते हो कि तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है किसी चीज के बारे में, कि अभी इसराइल और ईरान का लड़ाई चल रहा है, तो तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है, विथ लॉजिक, विथ स्टैटिस्टिक्स, एंड व्हाट वे फॉरवर्ड है। तो आप कर सकते हो उसके बेस पे, कीवर्ड्स, क्लासिफिकेशन, कितने नंबर ऑफ पेज है, ये सारा कुछ है। ये जब तुम पूरा अपलोड कर लोगे तो नेक्स्ट पेज में पूरा उसका डिटेल्स, हर एक ऑथर का ईमेल आईडी, ऑथरशीट आईडी, उसका स्कोपस आईडी, उसका रिसर्चर आईडी, सारा ही डालना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में। ऐसे ही करके आप चले जाओगे तो एंड तक जो ऑथर इंडिविजुअली डालना पड़ता है। तो अभी उतना टाइम नहीं है कि इन डिटेल कर पाएंगे, लेकिन ऐसे ही ये होता है। तो ये तो हो गया पेपर अपलोड और ये का।
अब मैं लास्ट एक चीज बताऊंगा, और उसके बाद मोर और लेस मैंने बता ही रखा है ज्यादातर चीज। एक रेफरेंस सॉफ्टवेयर रह गया। तो दो रेफरेंस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक मेंडले है, जोटेरो। तो मैं दोनों यूज किया, लेकिन मेरे को जोटेरो ना ज्यादा अच्छा लगा। मतलब इजी टू हैंडल, और मेरे को हेडक नहीं लगा। और मैं अपने एमएससी एमटेक वाले बच्चों को भी सिखाया, तो वो तुरंत कर लिया, तो अब वो पूरा काम करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। एक ये रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपकी जिंदगी को आसान करेगा। तो आपको गूगल में क्या लिखना है? जोटेरो लिखना है। जोटेरो लिख के इसको ओके कर देना है। सब फ्री है, इसमें कोई लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये ओपन सोर्स है, कम्युनिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा इसमें। जो आप जाओ, आप डाउनलोड कर लो कि कौन सा है, तो डाउनलोड ऑप्शन में चले जाओ। अब डाउनलोड में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। 64 बिट डेटा है आपका, 32 बिट है, और क्रोम कनेक्टर है। तो क्रोम कनेक्टर में क्या है, ये डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा, और ये तुम्हारा ड्राइव में जाके इंस्टॉल करेगा। तो दोनों इंस्टॉल करना है आपको। क्रोम कनेक्टर भी इंस्टॉल करना है, और आपको डाउनलोड 64 बिट वाला भी डाउनलोड करना है। तो मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऐसे तो पहले से इंस्टॉल है, लेकिन चलो मैं देखता हूँ आगे बढ़ता है कि नहीं। तो ऐसे करके आपको कुछ नहीं करना, वेरी इजी टू इंस्टॉल है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली। जोटेरो इज अ रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर, और कुछ नहीं है ये। डेटाबेस अच्छा रहता है। जैसे मान लो अभी तुम कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हो, पढ़ते हो, तो वो तुम्हारे ड्राइव में ऐसे ही पड़ा रहता है, और आप उसको साइड नहीं कर पाते हो, भूल भी जाते हो कि कभी कोई पेपर डाउनलोड किया था। फिर से डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन जोटेरो में क्या है, वो पूरा मास्टर लैब डेटा बनाता है। अभी मैं कर देता हूँ यस। ये बोल रहा है कि भैया वेलकम टू जिटेरो। ठीक है भैया जी, स्टैंडर्ड। हाँ भैया स्टैंडर्ड ही करो, सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल करो। चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है लॉन्च। चलो ये लॉन्च करके दिखा। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, sir. अब ये देखो, मेरे पास पहले से ये था इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, तो आपको जाके इंस्टॉल करना होगा। आपके सिस्टम ऐसे ही करके बन जाएगा। तो ये तो मैं ऐसे ही क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन लेता हूँ। इस डिफरेंट ये बेसिकली क्या डिफरेंट सॉफ्टवेयर मैंने पहले ही बता दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जाके प्लगइन्स भी हैं बहुत सारे, वो इंस्टॉल करोगे तो। लेकिन आज पहले है ऐड बाय आइडेंटिफायर न्यू आइटम्स। आप जो डाउनलोड कर रहे हो पेपर, वो अभी ड्राइव में करते हो ना। अब ड्राइव में करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो ये जर्नल आर्टिकल है, तो अभी तुमको मैन्युअली सबके बारे में लिखना पड़ता है। अभी मैं बताऊंगा पहले करना क्या है। तो आप क्या करो, फाइल में जाओ, और तुम किस टॉपिक पे डेटा पेपर। अब जैसे मान लो कि आप अपने ही में एक पेपर है जो तुम्हारे सेक्शन में डीप लर्निंग है, उसके बाद मशीन लर्निंग है, उसके बाद डिजास्टर है। तो मैं अलग अलग पेपर अलग अलग टॉपिक में इकट्ठा करके रखना चाहता हूँ, और बाद में उसको साइड करूंगा। तो मैं जाऊंगा यहाँ, और यहाँ क्या करूंगा, न्यू कलेक्शन। न्यू कलेक्शन क्या है, एआई के अंदर करना है कि बाहर करना है? तो मैं बोलूंगा माई लाइब्रेरी में जाओ, बाहर में, और मैं अभी पेपर एक बनाना चाहता हूँ मशीन लर्निंग पे, और उसका मैं बाद में साइट करूंगा और पढ़ूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग, यहाँ एक फोल्डर बना रहा हूँ। बेसिकली क्या बना रहा हूँ, एक फोल्डर बना रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इट्स अ फोल्डर। तो जैसे मैंने इसमें किया, यहाँ देखो एक मशीन लर्निंग का फोल्डर बन गया यहाँ। ठीक है, अब जितने भी पेपर मशीन लर्निंग के डाउनलोड करूंगा, मैं इसी फोल्डर में ऐड करूंगा इसको, क्योंकि वहां जाके मेरे को रेफरेंस में ऐड करना है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो अपन क्या करेंगे, मान लो कि कोई पेपर आप डाउनलोड किए, और आपको लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा पेपर है, मेरे को इसको साइड करना है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ इंटर आईएसबीएन नंबर है, डीओआई नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा और कोई पेपर डाउनलोड करता हूँ।
मैं हमेशा अपना ही नाम टाइप करूंगा क्योंकि किसी और को रेफरेंस में मानूंगा नहीं, अपने ही रेफरेंस दूंगा। अभी दिखाने के लिए, ऐसे तो आप ले सकते हो किसी का भी, क्योंकि जल्दी हो जाएगा इसलिए मेरे को याद है अपना। अब मान लो ये आर्टिकल है, मैं नेट पे कोई पेपर तुम ढूंढ रहे थे और तुमको लगा कि अरे यार ये वाला आर्टिकल बहुत बढ़िया है, इसको तो साइट करना पड़ेगा और ये हमारा पिलर है रिसर्च का। तो अब इसको साइट कैसे करें? अब लिखना, साइटेशन करना बड़ा हेडक है, हर का अलग अलग स्टाइल है हर जनरल में। अब इसको अगर मैनुअली लिखूंगा तो इसको मान लो कि मैं यहाँ वर्ड में जाके इसको रेफरेंसिंग स्टाइल कर लिखना चाहता हूँ, तो एक नया मैं वर्ड दिखाऊंगा कि कैसे वो आपकी लाइफ इजी कर देगा। एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ, का हाल बा? तो हम क्लास ले बतानी करी 10-15 मिनट में फोन। अरे ऑनलाइन रिसर्चर मानी हूँ, तो डिमांड बा। तो हम, हाँ आपका लेट सेशन चल रहा है। हाँ कोई नहीं, तो मैं आपको 10-15 मिनट में फोन करूँ? ठीक है, डन डन डन। तो अब मान लो कि मेरे को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर, दिख रहा है सर, यानी स्क्रीन दिख दिख रहा रहा है है। ना? अब मान लो इसी रेफरेंस को मेरे को लिखना है पीछे रेफरेंस में, चलो यार। अरे देखो ऐसे करके वो आ गया। अब सबका नाम लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब बिग हेडक। फिर उसका ये फॉन्ट ठीक करो, फिर उसका आईएसएन नंबर लिखो, उसका आईएसबीएम लिखो, पेज नंबर लिखो। अरे यार क्या क्या लिखेगा आदमी, कैसे सेट करेगा? एक रेफरेंस में सोचो तुम्हारा कितना देर लग जाएगा, ऊपर से मैनुअली दिक्कत है। दूसरा, इसके पास ऑप्शन भी है साइट करने का, जो ये जर्नल देता है कि आप किस स्टाइल में इसी रेफरेंस को लिखना चाहते हो। अब देखो ये डिफरेंट स्टाइल है, एमडीपीए सीएस स्टाइल का ऐसा है, एएमए स्टाइल का ऐसा है, चिकागो टर्बियन का ऐसा है, एपीए। लेकिन ये तो मान लो कि मैं एपीए स्टाइल में सारा कुछ चाहिए मेरे को फॉर एग्जांपल, तो मैं यहां से उठा लिया। ये जर्नल खुद दिया है, हर जर्नल वाला नहीं है, बढ़िया जर्नल जो है, बड़ा जर्नल है वही ये ऑप्शन आपको देता है। नहीं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा नहीं छोटे वाले चिंदी वाले जर्नल्स में, चिंदी चोर है जो। ठीक है। अब मैंने ये साइट कर लिया जहां की सारी चीजें दी हुई हैं, और ये थीसिस में ऐसे ही मैं सारा मेरे को मिल गया ऐसा साइट। लेकिन जब मैं गया पेपर में और थीसिस में, तो अब मेरा सुपरवाइजर बोल रहा है कि भैया ये तो ये स्टाइल नहीं चलेगा, इसमें तो ऊपर वाला चाहिए मेरे को, चिकागो ये। तो अब ये इसको फिर से सबके साइट में जाके इंडिविजुअली फिर से करोगे, मान लो वहाँ 50 है 100 है, कितना हेडक का काम है। उतना टाइम तो होगा नहीं। अब ये आपकी लाइफ इजी करेगा जोटेरो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अभी गए, क्या था इसका, ये डीवाई नंबर है, कॉपी द लिंक एड्रेस, जोटेरे को सॉफ्टवेयर जाओ, यहाँ एडिट में जाओ, फाइल में जाओ, ऐड बाय आइडेंटिफायर, यहाँ इसको कंट्रोल वी कर दो एंड पेस्ट करो। देखो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक मैंने सिर्फ क्या दिया, और ये आपके मशीन लर्निंग के पोर्टल में ऐड हो गया। और अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो आप कभी भी इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, फुल टेक्स्ट अवेलेबल। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया, मतलब वेब बेस्ड आ गया, जो डायरेक्टली किससे
लिंक्ड है, ये आपका लिंक्ड रहेगा ईमेल आईडी से। तो आप कहीं मान लीजिए नौकरी करते हो इंडिया में, आप चले गए जापान और उस समय पेपर का करेक्शन आ गया, बोल रहा है 2 दिन के अंदर सबमिट करना है, तो तुम थोड़े ना बोलोगे मैं जापान में हूँ और मैं 10 दिन बाद आऊंगा तो होगा, वो कर देगा रिजेक्ट। तो प्लस ये डिजिटल डायरेक्टरी है जहां की आप देखो कि ऑटोमेटेड फॉर्म में ये सारा उसका किस दिन पब्लिश हुआ, उसका एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पब्लिश हुआ, उसका डीवाई, सारा डिटेल्स ये ऐड कर लिया प्लस अटैचमेंट। तो आपका ये बन गया डन। रिवाइंड में लेटर कर देता हूँ। अब मशीन लर्निंग में जाता हूँ तो देखो ये पूरा पेपर जाके वैसे ही फ्लड्स से रिलेटेड है, ये पेपर हमने डाउनलोड कर रखा है। एआई से रिलेटेड जो पेपर है वो डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे करके आप जितना चाहो आप कर सकते हो। फिर इसमें क्या है, लेआउट आप चेंज कर सकते हो, स्टैंडर्ड व्यू है। तो आप इससे सॉफ्टवेयर है ना, जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा आप इसको सीखोगे। ठीक है, प्लगइन्स भी है, अटैचमेंट है, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स डब ये कर सकते हो। तो ऐसे करके पहले आप ऐड करो। अब जान लो कि अब मैं जाके इसमें कौन सा था, ह्यूमन कॉन्फोर्ट, किसका पेपर था, अभिषेक एयरटेल का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाता हूँ और इस सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने ज़ोटोरो इंस्टॉल किया तो यहाँ देखो कि आप ऑटोमेटिक मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में ये ज़ोटोरो ऐड हो गया। ये एक्सटेंशन है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके क्रोम से और आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो अगर मान लो कि अब मैं कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके, जो भी लिखा हुआ था, अब मैं इसको साइटेशन करना चाहता था, तो यहाँ पर जाऊंगा मैं, ऐड साइटेशन, इज रनिंग एंड ट्राई अगेन परसिस्ट। अब मेरे को, अब ये ना मेरे को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम। अब ये लेगा ही नहीं क्योंकि मैंने अभी इसको इंस्टॉल किया है। क्या करूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसे एक्सटेंशन आ गया ना, इस एक्सटेंशन के बाद ये वर्ड है, आपको क्या करना है, ऐड साइटेशन में जाओगे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट किया तो इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, तो अब वो उसको अपडेट लेगा। तो यहां जाके आप इसको ऐड करोगे, ऐड साइटेशन एंड ओके कर देना है, कुछ नहीं करना है। वो डायरेक्टली उससे जो पेपर हमने डाउनलोड किया उससे लिंक कर लेगा और यहाँ डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में जाके आपको जिस भी स्टाइल में करना है विद इन 1 सेकेंड वो उस स्टाइल में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट Zotero इन जनरल। क्योंकि अभी मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम इसको चलाने के लिए, क्योंकि अभी इंस्टॉल किया मैंने। कोई दिक्कत होगा तो कोई मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि जी मैंने सर। ज्यादातर तो टॉपिक जो इन्होंने दिया था मेरे को, जितेंद्र जी ने, वो मैंने बता ही दिया, प्री प्रिंट बता ही दिया, ऑथेंटिक जर्नल मैंने प्रीडिक्टरी बता ही दिया। अब प्री जी रिव्यू सर। देखो ऐसा पेटेंट रह गया, वो भी मैडम 5 मिनट में बता दे रहा हूँ। पेटेंट भी बता दूं कि छोड़ू। सर इनको ले लो, वो कल की पेटेंट जो के स्पीकर रिलेटेड है ना वो, क्वेश्चन है। कल की हाँ, वो स्पीकर है क्वेश्चन को शायद श्रीकांत आप जी। आंसर करेंगे तो हो जाएगा। श्रीकांत जी हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपका मेरे साथ और एक बच्ची है अस्मिता चकोले। सर, आप अस्मिता को भी थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए। हेलो अस्मिता, तू ऐकत आहे बेटा? हाँ हो। हाँ सर, थैंक यू सर। का हम आपका कल से ये जो पूरा लिंक आपने जितना बताया है सर, रिसर्च पेपर पीडीएफ और या अभी जो लास्ट में आपने जो साइटिंग का बताया सर, तो वो सर हम ये कहना चाहते हैं, इसमें हमको एक फर्स्ट बेनिफिट मिला है यहाँ पे। सर मुझे सर दिख नहीं रही है सर। सर सर मैं इज आपको, देयर, यू कैन आस्क। सर यही है। हाँ 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 हाँ।
तो सर आपने जैसे कल बताया, वो तो हमको वीडियो मिल जाएगा कि फर्स्ट साइकिल जब ये बच्चे असाइनमेंट लिखते हैं, तो अभी तक क्या हो रहा था कॉलेज में, ये बच्चे एक दूसरे का असाइनमेंट देख के लिखते थे, पर आज एक यूनिकनेस हमको ये दिखा है फर्स्ट कि जो जंगल में से भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वहां से हम वो असाइनमेंट को लेके एक अच्छा यूनिक असाइनमेंट बना सकते हैं। ये हो गई सर एज अ स्टडी मटेरियल पार्ट। अब ये जो रायसोनी यूनिवर्सिटी है, इनको फोर्थ ईयर में थीसिस लिखना पड़ता है, तो ये जो जनरल और ये जो बताया, तो सर क्या सेम प्रोसीजर फॉलो हो सकती है क्या सर एक एक्सटर्नल थीसिस के लिए? और सेकंड पॉइंट ये कि हम ये सेम थीसिस आईसीएआर को भी फाइल कर सकते हैं क्या सर? यस, अब देखो इसका दो तरीका है काम करने का। जो आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर क्या करते हैं कि एक पहले सैंपल स्टडी करते हैं, ठीक है ना। हाँ मेजर प्रोजेक्ट करने से पहले, जैसे मान लो कि मैं 1 करोड़ का प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, और वो बोलेगा कि भैया आप उस टॉपिक पे तो आपका पेपर ही नहीं है, तो 1 करोड़ रुपया कैसे देंगे। और इनिशियल बेसिक वर्क क्या आपने कभी डेटाबेस बनाया है? तो हमारे इंस्टीट्यूट में या कहीं, इससे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में था या जब मैं स्कॉलर था बीआईटी में, तो ट्रेंड जो मैंने प्रोफेसर्स का देखा कि हमारे यहाँ जैसे ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में एमएससी एमटेक या पीएचडी, एमएससी और एमटेक में जब तक एक स्कोपस पब्लिकेशन नहीं करेगा, एमएससी के लास्ट 6 महीने डेजर्टेशन थीसिस होती है, एमटेक की 1 साल की होती है, और पीएचडी की तो होनी ही होनी है। एक स्कोपस करना है तो ही उसको डिग्री अवार्ड करेंगे। तो द डे वन वो जब एडमिशन लेता है, उसी दिन से उसके अंदर रिसर्च का इंजेक्शन मारना चालू कर देते हैं कि भैया तेरे को डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी। चाहे वो 6 महीना लगे, 1 साल लगे, या जब भी लगे, उसके बाद ही तेरे को डिग्री देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये हमारे इंस्टीट्यूशनल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हाँ एडमिशन के समय बता देते हैं। तो अब क्या है, मान लो कि हमारे पास 25 बच्चों ने एडमिशन लिया, 5 टीचर के पास 5-5 बच्चे चले गए, तो हर 6 महीना में एटलीस्ट 6 स्कोपस पेपर आपको एमएससी वाला देके चला गया। तो अगर आईआईटी एनआईटी वाला जो प्रोफेसर प्रोफेसर बना इसलिए क्योंकि उसके अंदर 6 अच्छे स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट से 5 पेपर किया, तो 5 × 6 30 पेपर, वो उसी पे फोकस रखे रखा, तो वो 6 स्टूडेंट आपको प्रोफेसर बना के 30 पेपर दे सकते हैं। इसलिए आपको उसी डायमेंशन से बच्चों को खुद भी ट्रेनिंग देनी है। अब जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, मैं खुद ट्रेंड हूं, तो कल को कोई बच्चा आएगा मेरे से पूछेगा, तो मैं उसको बता सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। इसलिए एज अ सुपरवाइजर, एज अ मेंटर, जितने भी लोग बागे रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। 20 साल पहले जो रिसर्च किया था, प्लेटफॉर्म था, आज वो है ही नहीं। तो आप 20 साल पहले का स्टोरी सुना रहे हो, जबकि आपको पता ही नहीं कि भैया अपलोड कैसा है, तो वो इरेलेवेंट है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि जितने भी बच्चे हैं उनको रिसर्च डायमेंशन से फर्स्ट सेमेस्टर से ही लिखना चालू करवाइए आप। अचानक से वो यस सर। लिखना नहीं सीखेगा। जब तक वो सर अस्मिता, सेमेस्टर में जाएगा, उसके अंदर वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक कोर्स डाल दीजिए आप बच्चों के करिकुलम में, जहां की वो रिसर्च में हाइपोथेसिस का क्या महत्व है, रिसर्च क्वेश्चन का क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा किसको बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा क्या बोलते हैं, डेटा में कैसे स्टैटिस्टिकल करते हैं, और उसको छोटा छोटा पहले लिखवाइए। ऐसा नहीं है कि पहला दिन अच्छा है, छोटे लिखवाइए कि तू 3 पेज लिखे है, लेकिन वो 3 पेज तेरे होने चाहिए, किसी साइड से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्लेगरिज्म इज द फर्स्ट चीज जिससे हमें बचना है। तो वो जब हाँ करते करते कंटिन्यूअस, तो पहले वो गंदा से लिख के लाएगा, कोई बात नहीं, उसको पीठ थपथपाना, बहुत अच्छा तुमने लिखा, बहुत शानदार। फिर उसको बोलो कि नहीं लिखा है, लेकिन इसमें ये कर दोगे ना तो और मजा आएगा। तो ऐसे करके ना बच्चों को मतलब अंदर, फिर उसको कहीं, बच्चे को डायरेक्ट पेपर मत लिखवाइए। आप बच्चे को पहले कॉन्फ्रेंस में बोलो कि जाओ आप पोस्टर पेपर पेपर प्रेजेंट करो, आप जाओ पोस्टर लगाओ A3 साइज का, और जो साइंटिस्ट आएंगे उनको बताओ। तो जिस दिन वो कोई आएगा इसरो या डीआरडीओ का साइंटिस्ट, और 4 मिनट सामने उसके सामने वो एक्सप्रेस करेगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू द स्टूडेंट्स। और एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो वो घोड़ा है जो खुद ही रेस जिताएगा आपको। अच्छा सर, प्रॉब्लम यहाँ पे है। नाउ द अस्मिता इज बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आज उनके डीन ने मुझे खुद कॉल किया था। सर बोले अस्मिता, हमारे पूरे यूनिवर्सिटी में से अस्मिता ओनली वन स्टूडेंट हु जॉइन द सेमिनार बोले। और मैं सर खुद उसके पीछे कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सब मेंबर हूँ मैं। तो आपने जैसे ये रिसर्च का पूरा बताया, इतना तो हमको फाइनल में भी इतना यानी सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया नहीं था। अब पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आ रहा है सर, अभी हम जैसे ड्रैगन फ्रूट्स एंड एलोवेरा इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं दोनों मिला के। तो सर ने भी ये बोला, अब क्या है सर, अब ये छोटी बच्ची है जस्ट 19 ईयर्स एज,
बराबर है। इनका ये एक तरीका होता है कि ये गूगल से निकालते हैं सर हर एक चीजें। अब जैसे आपने बताया प्लेगरिज्म, अगर ये सब चीजें अगर करते रहेंगे तो फोर्थ ईयर में जब इनको थीसिस लगाए तो ये इनका थीसिस सर अगर मैं आईसीएआई लेवल पे अगर फाइल करूँ तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सर मैं ये चाहता हूँ कि आप अस्मिता को क्या गाइडलाइन दे सकते हैं कि ये प्लेगरिज्म से हम बचे, क्योंकि सर मैं भी अब दो चीजें कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी काफी सारी चीजें एरर आ रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट नहीं आपको हो रहा है पहले बोला, रिसर्च। आपको पहले ही मैंने बोला कि देखिए अभी ना वो छुट्टी है, ठीक है ना। अब मैं अपनी बेटी को बोल हम्म। दूंगा कि तुम 10th का एग्जाम दो, तो नहीं पास कर पाएगी, ठीक है ना। लेकिन ग्रेजुअली उसको ट्रेनिंग देना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या हाँ। बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर से आप असाइनमेंट देना, उसको पहले बोलो कॉन्फ्रेंस में जाके पेपर प्रेजेंट करो। तो अच्छा। और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग निकालो आप, रादर देन जर्नल। आजकल स्कोपस इंडेक्स कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होता है। तो बीएससी लेवल पे अगर वो कर लेगा, तो आज जो बच्चा है उसको आप बोल रहे हो कि 30 पेज लिखो, और मैप्स भी बनाओ, टेबल्स भी बनाओ, वो उसके अभी वो उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग क्या करना है उससे, जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आती है वो 4-5 पेजों की आती है। तो उसमें वो बच्चा ओके सर। बचा जाएगा, उसमें कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। तो एक बार जब उसका कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में छप जाएगा, करेक्शंस आएगा, वो रिव्यूअर खुद बताएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और एक बार ये समझ गया, अच्छा। करेक्शन कर लिया, तो उसको आइडिया हो जाएगा बेसिकली क्या है। हमारा क्या है, हमारे पेपर अगर कोई मेरे को बोलता है कि आपके इतने ज्यादा, मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, बोलता है कि भैया सोते समय भी लिखता है क्या तुम। तो मैं बोलता हूँ कि इट्स ऑल हाँ। अबाउट आइडिया। जैसे एक आर्टिस्ट एक किसी चेहरा को दिखता है और उसकी डिजाइनिंग बनाता है, वैसे ही एक आइडिया है मेरे को, रिव्यूअर क्या चाहता है मैं समझ जाता हूँ, मैं उसकी आत्मा में घुस जाता हूँ, और वो जो सोचता है मैं उसको कर देता हूँ, वो मेरे पेपर कर लेता है एक्सेप्ट। ठीक है ना। तो एक टीम है। तो सर क्या आप हमको मदद करोगे सर इस सब केस में, क्या हम आपसे जुड़ सकते हैं? मैं तो देखो पैदा ही रिसर्च के लिए हूँ। हाँ। अभी तो थैंक यू सो मच 7:30 बजे भी सर। पढ़ा रहा हूँ, ये तो मेरे को 1 ही घंटे का माल मुद्रा देंगे, बाकी तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं। ये तो पैशन अच्छा। है ना। तो सर पैसे के लिए नहीं हम पढ़ाता आपसे ये। जुड़ना चाहते हैं। पैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर मी, पैसा तो भगवान की कृपा से मैं, मेरी वाइफ और वेल ऑफ घर से आता हूँ। मेन है कि जो लोग बाग हैं जो आगे रिसर्च करेंगे इंडिया में, मैंने सीखा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है वो मेरे से भी चीनी निकले। तो गुरु से अगर चेला चीनी निकल जाए, तो वो अब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज नासा में काम कर रहे हैं, इसरो में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है ना। तो सर हमारा एक बना के जब तक इसका फोर्थ ईयर थीसिस लिखा है तो एक थीसिस यूनिवर्सिटी में फाइल हो और एक थीसिस आईसीएआर में फाइल हो इंडिविजुअली। हाँ और जी। वहां से ही हम जो अपना ड्रैगन फ्रूट और एलोवेरा का जो पेटेंट भी वहां पे फाइल ठीक। करें। हाँ जी। तो सर हम आपसे पक्का जुड़ना चाहते हैं हमेशा सर। 24/7, 24/7। प्लीज सर आपका सारी डिटेल्स हमें दे दीजिए सर। गूगल में हम आप आपसे टाइप, जल्दी जल्द देखो जुड़ेंगे मैं, सर। आई एम नॉट अ पर्सनल फिगर, आई एम अ पब्लिक फिगर। गूगल में टाइप करोगे सारे डिटेल्स मिल जाएगा, ऑल द डिटेल्स, मेरा ओके कॉन्टैक्ट थैंक यू नंबर, सर, मेरा ईमेल थैंक यू सो आईडी। मच सर। ठीक है ना। मैं और सर थोड़ा बताओगे सर जनरल से पेटेंट का, सर थोड़ा एक सफर बताओगे क्या सर, अब कैसे नहीं, लेना अब है इनको बोलो जनरल से नेक्स्ट पेटेंट? कोई सेशन करेगा पेटेंट में बुलाएगा तब बोलूंगा, एक ही दिन थोड़ी ना इनको सिखा दूंगा सब। तो ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मेरे मच 10 पेज पे 10 पेटेंट भी मेरे को अवॉर्डेड है। तो ऐसा है, अब नेक्स्ट अच्छा। जो लेक्चर होगा कभी ये बुलाएंगे तो पेटेंट पे दे देंगे। ओके सर, थैंक यू। यस सर। ठीक। थैंक यू सर। सर जैसा कि मैं देख पेरेंट्स ने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और उनका फीडबैक भी ऐसा है कि दिस इज द बेस्ट लेक्चर दे हैव अटेंडेड सो फार। और जैसे आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया कैसे रेफरेंस को स्टाइल करना है एंड एवरीथिंग, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आया है, आपका तरीका भी बहुत पसंद आया है। इवन सम ऑफ देम फाइंड यू टू क्यूट टू ऑनेस्ट नहीं टू देखो, हैव रिसर्च दे तो आर ऐसे ही देखो, वेरी हैप्पी। जो पुराने जमाने के प्रोफेसर हैं ना जबरदस्ती का भोकाल बना के रखते हैं, आता जाता उनको कुछ है नहीं। अभी जो चीज बोले ना वो एक पेपर भी सेट नहीं कर पाते रेफरेंस, और बड़ी बड़ी ज्ञान देंगे। तो वो आज के जमाने का है कि स्टूडेंट से दोस्ती रखो, अपने से उसको डर ना हो कि वो आके आपको बताए कि प्रॉब्लम कहाँ है, तभी तो सोल्यूशन देंगे ना। और आपको भी सीखना है, आपको आएगा नहीं, आप बच्चे को बोले तुम करो भैया, तुम अपलोड करो, मैं तो साइन करूंगा, तो फिर पेपर कहाँ से निकलेगा। जी सर डेफिनेटली। सर उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स के जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं, यस। लाइक कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं, कुछ हैं जो पीएचडी स्कॉलर्स नहीं है। इवन जो क्वेश्चन थोड़े बेसिक थे मैंने भी थोड़ा ट्राई किया कि मैं उनको आंसर करूं, बट एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ओवरऑल। ओवरऑल अगर किसी को भी कोई पब्लिकेशन करना है तो उसका मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और अगर कोई पेपर रफली बना रहा है तो कितने पेजेस का बनाए, क्या करे कैसे करे, मैं थोड़ा सा जैसा
जो ठीक है, नए बच्चे हैं उनके ठीक लिए है। आप बता दीजिए। तो इसलिए एक तो था, आप मैंने बताया कि देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है। जो सबसे छोटा फॉर्म है वो कमेंट है। उसके बाद आता है कमेंट्री। कमेंट्री के बाद आता है केस स्टडी। केस स्टडी के बाद आता है रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल के बाद इससे दूसरा एंड है प्रोस्पेक्टिव। तो स्टार्ट होता है मिनिमम 500 वर्ड्स टू मैक्सिमम 6,000 वर्ड्स, इसी के अंदर लिखना है। अब इसमें डिफरेंट है। व्यू पॉइंट आपका 22 पेज का नहीं हो सकता। व्यू पॉइंट विल ऑलवेज बी ऑफ, जैसे साइंस के जो पेपर आते हैं, आप जो भी लड़के हैं उनको ना, सबसे बढ़िया जो जर्नल है ना जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एक ही जगह छपता है, वो करंट साइंस का जर्नल है। उसमें कमेंट्री भी छपता है, उसमें एडिटोरियल भी छपता है, उसमें प्रोस्पेक्टिव भी छपता है, उसमें केस स्टडी भी छपता है। द ओनली डिफरेंस होता है अप्रोच, मींस वर्ड काउंट। हर में वर्ड काउंट फिक्स है। जैसे मान लो किसी में 500 वर्ड्स होगा, किसी में 1500, किसी में 2 फिगर अलाउड है, विथ 1000 वर्ड्स है। तो ये उसका ऑथर गाइडलाइंस फाइल सबमिशन है, वो है। तो जो ये 1, 150, 500 वर्ड वाले जो लोग बाग होते हैं, वो लोग बाग हैं जो अपने फील्ड में बहुत महारत है, बहुत सारा पेपर किया, बहुत नाम है। तो उनका वो छपता है, क्योंकि वो अपना व्यू पॉइंट, अब मैं अगर मैं बोलूं तो मेरा व्यू पॉइंट कोई मायने नहीं लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं अभी। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि ऑनरेबल डॉक्टर एपीजी कलाम साहब कुछ व्यू पॉइंट रखे हैं 300 वर्ड्स में, तो वो जेम्स ऑफ अ वर्ड लिखे होंगे 300 में। तो ये डिफरेंस है रिसर्च करने में। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आपने पूछा था। जी सर, जी सर। और सर और भी थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास या जो भी स्कॉलर्स होते हैं, वंस वो अपने पेपर कहीं सबमिट करते हैं उसके बाद कई बार एज अ रिव्यूअर उनके पास भी पेपर आना शुरू हो जाते हैं, हम्म। जबकि वो अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में होते हैं या अपने, इसमें तो एक रिव्यूअर को भी क्या कुछ देखना चाहिए कि नहीं नहीं, अब इस पे मैं समझ गया। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो रिव्यू ओपन कर रहे हैं उसके लिए पैसे तो मिल नहीं रहे, और जितने पेपर अपलोड होते हैं उतने रिव्यूअर है नहीं किसी के पास। अब फ्री फोकट में मेरे पास, अगर मैं अभी अपना ईमेल पैनल खोलूं, मेरे पास कम से कम 200 पेपर रिव्यू करने के लिए है, और उसके अगेंस्ट में कोई इमोलमेंट्स नहीं है, रेमुनरेशन नहीं है। तो एज अ ऑथर पहले मैं वॉलंटरी करता हूँ, बाद में मेरे को लगता है कि नहीं यार, ना मेरे को कोई फायदा है ना कुछ, कभी फ्री हो गया तो 2, 4 पेपर का कर दिया। तो उस समय क्या है कि पेपर के पास फ्लो ऑफ कंपाइलेशन, मान लो मेरे पास 200 पेपर आ गया, एडिटर इन चीफ है, और मैं जिनको जिनको रिव्यू करने के लिए टॉप मोस्ट प्रोफेसर दे रहा हूँ, वो कोई जवाब नहीं दे रहा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि उसको तो 18 दिन में लिखा हुआ मेरे जर्नल में कि फर्स्ट डिसीजन देना है। तो वो बाउंड हो जाते हैं किसी भी नौसिखिया को देने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी वैसे लड़के को जब पेपर चला जाता है, तो जो उसके सुपरवाइजर ने और उसने रिसर्च किया है, उसके अलावा अगर हमने कोई इनोवेटिव किया है ना, तो वो तैयार नहीं होता। यंग रिसर्चर को क्या लगता है कि जो वो और उसका सुपरवाइजर सोचा या पब्लिकेशन किया है वही ज्ञान है, और उसके अलग कोई व्यू पॉइंट करता है तो वो स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर देता है, और वो आपको चांस भी नहीं देता है फिर से पेपर करेक्शन करने का। इसलिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, कि अगर पेपर में थोड़ा भी इनोवेशन है तो उसको एक मौका मिलना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसलिए ये मजबूरी में लोग बात करते हैं। लेकिन ओपन एसेस जैसे एमडीपीआई मैंने दिखाया, जो पैनल दिखाया, उसमें मेरे को पर पेपर रिव्यू करने के लिए 100 CHF मिलते हैं। तो अब मैं अगर टाइम फ्री हूं और कहीं फ्री और 100 CHF मिल रहा है, तो मैं, आप कोई भी आदमी कहाँ जाएगा पता है। तो और उसको और रिगरस करता है आदमी, क्योंकि उसके पैनल है तो पैसे मिल रहे हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भैया आप पैसे दो, देखो कैसे बड़े प्रोफेसर करना चालू कर देंगे। फ्री में कोई नहीं करता है ना यार। जी सर, जी सर। सर व्हाट इज आईबीआईडी? मतलब आईबीआईडी किसी ने पूछा है कि बहुत ज्यादा पेपर्स में यूज हो रहा है, बट ही इज नॉट क्लियर अबाउट द आईबीआईडी। वो जो है, आदमी को पहले मेरे को उसको स्क्रीन पे दिखाना होगा कि कैसे लिखता है। ये मैं अभी फर्स्ट टाइम पढ़ा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब कभी बुलाओगे तो मैं बता दूंगा। मे बी ये स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डोमेन ऑफ रिसर्च होगा। आईडीज वो यूनिक आईडी जो इंडिविजुअल है, ज्यादातर जो
जर्नल्स हैं वो डीवाई से चलते हैं, ठीक है ना। डीवाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी का कोई सब्स्टिट्यूशन चल रहा होगा मार्केट में जो आईबीआईडी से चल रहा होगा, लेकिन डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ही सबसे यूनिक आईडी है, जो कहीं भी आप लिखोगे, चाहे पबमेड का जर्नल है, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, वो एक्सेप्टेड है। ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो किसी का पीएचडी का काम होता है, ज्यादा काम होता है, 4 5 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसको क्या, उसको ऑब्जेक्टिव वाइज फ्रेगरेंट में पब्लिश करना चाहिए या फिर उसका एक ही पेपर बनाना चाहिए? मतलब कैसे अपने काम को वो प्रेजेंट करे? अब जैसे देखो, दो टाइप का आदमी होता है लाइफ में। एक होता है मेरे जैसे सुपरवाइजर जो बिंदास रहता है, मैं बोलता हूँ ठीक है यार, बेसिक क्या बोलती है मेरी यूनिवर्सिटी, बोलती है 2 स्कोपस या 2 वेब ऑफ साइंस, तो मैं बोलता हूँ यार 3 ऑब्जेक्टिव रखो और 2 पेपर पब्लिश कर दो, थीसिस जमा कर दो। कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे मेरे सुपरवाइजर थे, वो ऐसे थे कि उनको बताते जाओ सर ये भी कर सकता हूँ, वो लिखते जाते थे लिखते जाते थे। अब उनको मैंने आइडिया दिया 6 पेपर का, अब जब तक मैं 6 पेपर नहीं निकालूंगा तब तक वो पीएचडी मेरे को नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या किया कि हर एक ऑब्जेक्टिव को एक पेपर बनाया। अब आईआईटी एंड जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी वाले एक ही ऑब्जेक्टिव रखते हैं और उसी में एक मेथोडोलॉजी बनाए रहते हैं। आईआईटी एनआईटी वाले क्या करते हैं, हर पेपर को एज ए चैप्टर बनाते हैं। जैसे मैं जब पीएचडी किया बीआईटी से, मेरे हर एक चैप्टर पब्लिश है एज अ पेपर। तो 6 चैप्टर है मेरे अब पूरी थीसिस में, और मेरे पास 6 एससीआई पेपर है, ठीक है ना। वैसे ही अब मैं क्या करता हूं अपने सेम मॉडल पे, क्योंकि आप, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कल को हमारा बच्चा भी जाएगा इंटरव्यू में, तो जहां एनआईटी और आईआईटी वाला पीएचडी करके आ रहे हैं, वहां हमारे बच्चे को अपनी थीसिस छुपाने की जरूरत ना पड़ जाए कि उसको शर्म आ जाए कि भैया मैंने कोई काम नहीं किया है। प्लस वो आपका शोध गंगा में चढ़ता है, पूरा इंडिया पढ़ता है कि आपके अंदर कौन बाग क्या पीएचडी कर रहा, कौन सा मॉडल है। तो वैसा करो कि आप आज भी, मैं 10 साल या 15 साल बाद अपनी थीसिस जो बच्चे करते हैं उनके सामने रखता हूँ, जबकि बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर अपनी थीसिस नहीं दिखाते हैं, क्योंकि द काइंड ऑफ वर्क बोलेगा। तो जब आप काम करोगे ना, तो तुम्हारा काम खुद ही बोलेगा। तो जितना ज्यादा आपके पब्लिकेशन होंगे, तो आप बेसिकली पीएचडी क्यों करना चाहते हो, या तो साइंटिस्ट बनना चाहते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये पेपर डायरेक्टली कनेक्टेड है एपीआई। तो अगर मान लो तुम असिस्टेंट प्रोफेसर लेना चाहते हो, तो हर पेपर के 2 पॉइंट्स मिलते हैं, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 5 पेपर काउंट होता है। तो अगर मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त गया इंटरव्यू में, तुमने 2 पेपर पब्लिश किया, तुमको मिले 4 पॉइंट, उसने 5 पेपर पब्लिश किया, उसको मिले 10 पॉइंट। तो जब वो ग्रेडिंग बनेगा, मेरिट लिस्ट, तो ऑब्वियसली है कि तुम रिजेक्ट हो जाओगे, सिंस तुम्हारे पास 3 पेपर कम था। तो इसलिए आपको पूरा स्टैटिस्टिकली देखना है कि मैं कहाँ कमजोर हूं, दूसरा कहाँ मेरे से मजबूत है। तो जितना ज्यादा आप पेपर करोगे, वो उतना ही आपको फायदा करेगा। एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में 5 पेपर, क्योंकि मेरी बैटरी लो हो रही है, तो मैं चार्ज में लगाना पड़ेगा, और बीच में आई थिंक सर हैज बीन डिस्कनेक्टेड। बैटरी लो हो गई। हाँ, वो काफी देर से बोल रहे हैं ना, इसलिए शायद वो फोन चार्जिंग पे लगाने का रह गया सर। प्लीज जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ऐसे लेक्चर तो कंप्लीट हो चुका होगा। जी सर, लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है एंड क्वेश्चन भी वी हैव टेकन। यस। रिस्पेक्टिव सर एंड मैम, इनके लेक्चर्स हमें प्लीज ग्रुप पे डाल दीजिए, इट्स टू मच इम्पोर्टेंट। 100%। जो भी यूट्यूब लेक्चर्स है चैनल उनकी, पे यूट्यूब चैनल हाँ, पे अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, आप देख सकते हैं जो कभी कल भी। लिंक दिया था ना, उसी लिंक में उसको क्लिक करो तो डे 2 भी खुल जाएगा, सेम लिंक पे। गुड इवनिंग सर, सतीश सर। आई थिंक सर विल नॉट बी एबल टू अनम्यूट। सर आ गए क्या, एक मिनट, लेट मी चेक। यस, so let's हाँ, मोबाइल से लॉगिन कर लिया मैंने अब, क्योंकि अब जी तो सर, स्लाइड दिखानी जी सर। है। हाँ, और बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ वही। नहीं सर, बस वी आर जस्ट डन, क्वेश्चंस भी हो गए थे। हम्म।
मैं किसी को पूछना तो डायरेक्ट पूछ सकता है, मेरे से डरने की बात नहीं है यार। जी सर सर, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से था। एक्चुअल में मैंने भी पिछले कुछ टाइम में एक किसी एडिटर के साथ काम किया था, एक बुक में चैप्टर कंट्रीब्यूट किया था। तो उसमें क्या होता है, जैसे प्लेजरिज्म का आपने बताया कि हमें एक कमांड देनी पड़ती है कि इतने वर्ड्स वो डिटेक्ट करता है प्लेजरिज्म के लिए। तो उसमें उन्होंने पता नहीं क्या किया था, जैसे मेरा हमारा यूनिवर्सिटी का नाम में भी वो प्लेजरिज्म ले रहा था। मतलब सम थिंग्स कुछ ऐसी होती हैं जो हम चेंज ही नहीं कर सकते। सॉरी, जैसे अपना डिपार्टमेंट का नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम हम तो चेंज नहीं कर सकते, वो उसमें भी प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर रहा था। तो ऐसी चीजों को कैसे अवॉइड किया जाए? नहीं तो उसमें जब आप चेक करते हो ना तो उसमें ऑप्शन आता है। जब जी सर। प्लेगरिज्म आप चेक करते हो तो उसमें ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू एक्सक्लूड रेफरेंसेस। वहाँ वो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, तब वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। एक तो ये है। वो हमें बार बार दूसरा रिपोर्ट भेज रहे ऑप्शन थे, इतना प्लेजरिज्म है, फिर वी हैव रिक्वेस्टेड देम कि अब नहीं तो यूनिवर्सिटी के उसको नाम में आपको भी अगर प्लेजरिज्म लेगा देन हाउ विल वी नहीं डू नहीं, इट? उसमें क्या है ना कि प्लेगरिज्म को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसमें देना पड़ता है कि क्या क्या एक्सक्लूड है। तो एक्सक्लूड में आप एफिलिएशन लिख दोगे, एक्सक्लूड में रेफरेंसेस दे दोगे। या तो एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका है कि मैं हम लोग क्या करते हैं, टाइटल रखे रहते हैं, जितना भी नाम है उसके अंदर का एफिलिएशन वो मार के उड़ा देते हैं और रेफरेंस मार के उड़ा देते हैं और फिर उसको चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। तो अब जब वो मैं को बोलेगा, जैसे मान लो अभी तो स्क्रीन मैं शेयर कर जी पाऊंगा कि नहीं, कर सकता हूँ मैं अभी मोबाइल से। चलो मैं स्क्रीन अभी शेयर करता हूँ। इंटायर स्क्रीन, ओके। आप देख पा रहे हो मेरा सर। स्क्रीन? नो सर। अभी आया? सर नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी। तो जी मैं सर, अभी मतलब दिखा अगर देता ऐसा हूँ। कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें एडिटर को बोल देना पड़ेगा कि आप ये चीजें आपको बोल एक्सक्लूड देना कर पड़ेगा कि दीजिए। क्या क्या रीजन है। और अगर आपके पास, जैसे हमारे पास टर्निटिन का अपना लाइसेंस वर्जन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी रिपोर्ट खुद ही निकाल के उसको भेज देते हैं। ओके। ने बोला तो मैं अपनी रिपोर्ट निकाल के उसको भेज दूंगा इन डिफेंस, जिसमें बोल दूंगा कि ये चीजें हैं, ये इशू है। आपने रेफरेंसेस को भी कोट किया है, आप इसको भी करो। ये देखो एक्सक्लूड किया है, तो आपका जो 30% आ रहा है, जब मैंने किया तो ये 15% आ रहा है। जी तो सर। जी जस्टिफिकेशन है, वो आदमी भी समझदार है, समझेगा वो यहाँ था इसलिए आ गया। तो ऐसा है। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। एंड अभी तो वी आर इन द एंड ऑफ द सेशन, सारे क्वेश्चंस भी हमने ले लिए हैं। और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में हमें हर चीज खुद गूगल पे लॉग इन करके कैसे किस चीज को इंस्टॉल करना है, डेफिनेट। क्या सब आपने बताया है। और पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, इवन हमारे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। सो थैंक यू सो मच सर। और पार्टिसिपेंट्स सभी भी मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाह रहे हैं। तो इसी जय प्रकार महाकाल। देखो मैं हमेशा किसी को भी बोलता हूँ कि देखो, एक ना गॉड फियरिंग होना चाहिए एंड गॉड लविंग, दोनों होना चाहिए। तो जब भी मेरा पेपर है ना, मैं वर्ल्ड में चाहे इंडिया में फेमस हूँ जय महाकाल से। आई एम अ बिग फैन ऑफ महाकाल एंड द डे आई स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम, फॉलोइंग, तो मेरे लाइफ में ना खुशियां बहुत आ गई हैं। मतलब वो मेरे को बहुत ख्याल रखते हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ तो सुनते हैं एंड मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब जैसे कल ही मेरा Q1, मेरी एनिवर्सरी थी, तो आया कल एक पेपर Q1। मेरा बर्थडे आता है, मतलब मेरी बर्थडे, कुछ भी चीज मेरे लाइफ में अच्छी है, मैं जन्म लिया हूँ, शादी की है, ऑटोमेटिक वो उस दिन एज अ गिफ्ट मेरे को भेज देते हैं। तो और क्या चाहिए, एक रिसर्चर को गिफ्ट एज अ पेपर ही चाहिए, बुक ही जी चाहिए। सर। तो वो हमेशा देते हैं। तो हमेशा एक डिसिप्लिन बनाओ, एक टाइम टेबल रहो, पेपर में कमेंट्स आए तो डरो नहीं, शॉर्टकट्स मत अपनाओ। यंग रिसर्चर हो तो अभी 20-30 साल काम करना है, तो हमेशा नया टेक्निक सीखो, स्टैटिस्टिक्स सीखो, सॉफ्टवेयर सीखो, ट्रेन करो। देखो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट स्किलिंग। अगर आपको आएगा तभी आप दूसरे को सिखा सकते हो। और कंटिन्यूअस इसको अपडेट करना है सॉफ्टवेयर की तरह। जैसे मोबाइल में, एंड्रॉयड में रेगुलर अपडेशन आता है, वैसे रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस अपडेशन। तो आज भी मैं अपने स्टूडेंट जो DRDO, इसरो गए हैं, कुछ नया सीख के आते हैं, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, सीखता हूँ। तो उसमें उस समय ये नहीं देखना है कि मैं सुपरवाइजर हूँ तो मैं, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, तेरे से दो बातें सीख लूंगा। सीखने के लिए एक छोटा बच्चा भी सिखा के आपको जा सकता है। तो इसलिए हमेशा बी अ लर्नर एंड बी अ रिसर्चर टू जी राइट सर। गुड पेपर। थैंक यू सर। और पार्टिसिपेंट्स आपको बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी भी बोल रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी बिलेटेड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस और फॉर एनलाइटनिंग अस। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू।
Thank you. Bye. So, dear Bye. participants, this is all for today. And on the behalf of Vital Biotech Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society, Kota, Ravindranath Tagore University, Bhopal, and Guru Gorakhnath Ji Government College, Hisar, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to the Honorable Speaker, Dr. Suraj sir, and to all the participants for joining this FDP and being so patient and attentive throughout the session. So, thank you all and have a great evening.